आणि रिअल टाइम मध्ये ते सेक्युअरच VPC असलं पाहिजे, जे काल आपण डिफाईन केलं पब्लिक प्रायव्हेट. स्क्रीन विजिबल? हो. ओके. So next week we will see about the NAT gateway and NACL. So normally जो ये होता है ना, प्राइवेट सबनेट पे जो हम डेटाबेस बनाते हैं या EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, अगर उसको पैच करना है तो इंटरनेट एक्सेस लगेगा, राइट? सो उसको इंटरनेट एक्सेस कैसे प्रोवाइड करना है वो भी हम VPC में देख लेंगे नेक्स्ट इसमें. सिक्योरिटी ग्रुप और NACL का तो डिफरेंस आता ही है, स्टेटफुल और स्टेटलेस, वो नेक्स्ट इसमें हम कवर कर लेंगे दोनों. और कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट इसका देख लेते हैं, ट्रांजिट गेटवे का, कि भी ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन आता है. Then you want to see that setup, right? How to connect RDS from the Linux Bastion server, right? Command line. Yes. Yes, okay. So before that, I will show you one thing. सर आधी क्वेश्चन काय सांगितले तुम्ही? कोणता क्वेश्चन? आधी तुम्ही सांगितले ना, 2 क्वेश्चन सांगितलेत ना. आता बोलता बोलता काहीतरी 2 क्वेश्चन सांगितले. हे बघा, हे डिफरन्स बिटवीन नेटवर्क ACL, NACL और सिक्युरिटी ग्रुप अँड ट्रान्झिट गेटवे. हे पण आजकाल इंटरव्यू मध्ये विचारतायत, ट्रान्झिट गेटवे. तर हे आपण फ्रायडे नाही, सॉरी, नेक्स्ट सॅटर्डेला हे कव्हर करू, थेरॉटिकल. आणि NAT gateway. NAT gateway means what? See, let's say we have a private subnet and we want to patch any private server, EC2 or database. So by default, private subnets so doesn't provide any internet access. So how we can assign temporary internet access through the NAT gateway, and how we can update the patch over there. So I will show you that in the next Saturday. Anyone heard about this NAT gateway? This one. So NAT gateway we normally configure on the, let's say we have this public subnet and this is a private subnet. So by default, as we seen yesterday, for the private subnet we don't have any internet, right? So for public subnet we will create internet connection. So here we need, on the top of that, we can create one NAT gateway on the public subnet, and by using some route table entry, we can provide the temporary access to the private subnet through the NAT gateway. Earlier it was people use NAT instance, but now the feature is almost very old, but we can use NAT gateway. We don't need to configure NAT instance. So I will show you in the next session, Saturday. And apart from this transit gateway, we can see theoretical concept and the difference between security group and NACL. How we can configure the NACL rules. Security group we already seen how we can configure for the inbound rules. Okay. So security group is work only for the instance level. So whatever the security we want to keep, like open any port or block something, by default it's all traffic block. So if you want to allow some traffic, so we can open instance level by using security group. But what about the subnet level configuration? Because subnet has a very large group of IP address, right? CIDR. So on that subnet level settings, we can use NACL, network access control layer. So in security group, we can't deny any particular network traffic because it's already by default block. Okay, but in NACL we can allow and block traffic if you want to block something, IP or something. Okay, so we will see this detailed part in the next session. So today's agenda is basically I will show you how to create the Bastion server on the Linux base, and from there how command line how we can connect the database servers. Okay, and then
I will show you one more part of the VPC section, which I have shown yesterday. So this one, right? VPC and more. So in earlier version, we have seen we need to configure each subnets and the settings or the naming convention. But in the new feature, VPC and more, we don't need to configure anything. You can see the preview button option here, how it will create the VPC. Subnets, 4 subnets, then route table and network, internet gateway and the VPC endpoints. Okay. So I will show you this. So meantime, what we can do is we can create one Bastion server based on the Linux. So meantime, it will update available. So same process we can follow. The instance, we can give the name like demo Bastion EC2 Linux. Okay. And here we can just select. You can either go with the Ubuntu or Amazon Linux. Okay. So I will select Ubuntu here and just normal T2 micro free tier eligible. Then key pair. Let me check which one I have. This one PPK, or I can create new one, no issues. Demo Bastion EC2 Linux. Okay. Just select PPK here and just simply click on create. Okay. So it will create and download automatically. Here in the network settings, we can do like yesterday we have created this one, right? Demo DevOps VPC. So we can just select that. This Bastion server should be on the public subnet because we want to access from our network. Then auto assign security group. We already have yesterday Bastion one. Okay, we can just select that. Displace configuration, we can go with the default one, and we don't want to install any additional package here. Okay, so we can just go with the default one. Just launch it. It will take 1 or 2 minutes here. So during the states should be available. So what will happen basically on the backend side, he will check the 2 states here. This might come in the interview questions. I think I already explained, but still there are two checks, 2 by 2 checks, right? Both should be successfully completed. Instance check and system check. It's basically your where this VM getting created on the underlying hardware machine. He will check the network connectivity and the underlying hardware system. If that is compatible and the healthy state, then he will pass the status check. Also, the instance check means your VM booting process and all the software level, instance level basically. He will check also on the instance level. So both checks should be successfully. Or only that case he will state will convert as a available state here. If that got failed, we can just as a solution wise we can just normally stop and start or just reboot the instance. So it will migrate from the backend side with the on the healthy state machine. So it will take time. So meantime, what we can do is we can see this new feature. So here if we just select this range 10.0.0/16, and here we don't need to configure separate subnet here. We just need to select how much availability zones we need, how much subnet we need. Okay, public subnet, private subnet. So it will automatically convert this calculation. So yesterday we have seen we use was one tool, right? Which is subnet calculator. So here in this new feature, we don't need to use this feature.
So definitely it's just we need to select how many subnets we required, public and private. Okay. And then it will automatically, based on that, it will automatically divide in the subnet level. And then naming convention, if you need endpoint, I will show you next class what is the VPC endpoint. So NAT gateway we required or not, we can just select here. So for now, we will not require NAT gateway. So we can just select as a none. Okay. We have selected two public subnet, two private subnet. So it will automatically calculate. Okay. And here the options like DNS resolution, it will automatically just select, and we can just simply create it. So you can just in the preview section, you can see what will happen when we do click on this create button. Okay. It will automatically create your two public subnet, two private subnet. It will automatically create your route tables, public and private. Okay. Also, it will automatically create your internet gateway, and it will, we don't need to make any manual entry like we have done yesterday, subnet association, route entry like that. Okay. It will automatically create it. So let's see. This is a new feature launched by the AWS. So it's very quick setup. You can see the status here. He created the VPC, then creating the VPC creation, he creating the subnets. Okay. Automatically attaching internet gateway to VPC. Okay. Yesterday we have done the manually. So create route tables automatically. Then he will automatically add that subnet into that particular route tables. Okay. And verifying the route table creation. So now we can just go and just check. We can just copy this VPC ID. Okay. Just range is 10.series. If you just click on this subnet now, let me refresh once. If I just filter out here, you can see we have a two public let me filter it. Yeah, two public subnet and two private subnet. Okay. If I go to route tables, see one public route tables, which is he added the two subnets here, two public subnet, and he created the two separate private route tables for different, for separate two subnets here. Okay. And if I go to internet gateway, search with that VPC ID, you can see here by default he attached to the particular VPC which we got created. If I check route table entry, let me just click on this public one. Okay. If I just go to this route entry, he added automatically route entry. Okay. Which we have yesterday, जो हमने कल मैनुअली किया था यहाँ पे, राइट, एडिट राउट करके सबनेट एसोसिएशन में ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस नए फीचर में हमें मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप CID रेंज दे दो, आपको क्या चाहिए वहाँ पे, एंड जस्ट क्लिक ऑन हाउ मेनी सबनेट्स यू नीड, जस्ट ग्राफिकली आप क्लिक कर सेलेक्ट करके जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। सो ऑटोमेटिकली ही विल डू ऑल द स्टेप्स लाइक वट एवर द सबनेट एसोसिएशन एंट्री, राउट्स एंट्री। अगर आपने वहाँ पे नेट गेटवे भी सेलेक्ट कर लिया ना, तो वो भी आपको करके दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पे वो नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम। अभी फिलहाल तो आप ये नेक्स्ट सेशन तक आप ये वाला प्रैक्टिस कर सकते हो। Just try to create the VPC both way, just normal traditional way and this new feature ways. Okay, you can just get some confidence on that. And उसके बाद अभी हम आते हैं अपने बैश सर्वर पे। ये ऑप्शन में किसी को डाउट है क्या? कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कितने सबनेट चाहिए वो जस्ट सेलेक्ट कर लीजिए वहां से, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। Any doubts on this new feature? न्यू फीचर बहुत इजी लग रहा है बिकॉज वहां पे SG ग्रुप वगैरह ये वो क्रिएट करना पड़ता था, यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें बहुत आसान है। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हो जाएगी। यस, जस्ट हमें सेट करना है कि कितना सबनेट चाहिए, कितना नेट गेटवे चाहिए कि नहीं चाहिए, VPC एंड पॉइंट, तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद करके दे देगा और सेटिंग भी करके दे देगा। ऐसे नहीं कि मैं नया बंदा हूँ मुझे VPC सेटअप करना नहीं आता। जस्ट सेलेक्ट दो 2-3 ऑप्शंस एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। सो बाकी सारा चीजें ऑटोमेटिक करके दे देगा। बट एज अ डेवऑप्स इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियर वी शुड नो बोथ बोथ द वे, कि नॉर्मल कैसे जाते हैं और इस वे से कैसे जाना है। ठीक है। उसमें अपन ने जोन्स भी सिलेक्ट किए, राइट? तो वो
इसके ऊपर डिपेंड रहता है कितने जोन सेलेक्ट करना है या फिर कितने देना है? हाँ, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजाइन करना है ना, आर्किटेक्चर, वो कितने जोन में बनाना है अवेलेबिलिटी के लिए, वो हिसाब से हमें वो हम वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो तो जैसे जैसे अभी आपने बाय आर्किटेक्चर डिफॉल्ट इसका अभी देखा ना। हम्म, हम्म। ये मुंबई let me show रीजन you। पे है ना अभी अपन, मतलब आप जो दिखा रहे हो उसका हाँ, क्रिएट सा, तो जब जोन सिलेक्ट करते हैं तो वो कोई दूसरा रीजन होता है कैसा? नहीं, पहले आपको यहाँ पे रीजन ही चॉइस करना है, पहले आपको कहाँ पे डिप्लॉय करना है रिसोर्सेज। ऐसे नहीं कि आपने हम्म, गलती से कोई नॉर्थ वर्जीनिया पे चले गए और वहाँ पे रिसोर्स क्रिएट किया तो आपको मुंबई में दिखेगा। सो वह फर्स्ट मेक श्योर कि आपको फर्स्ट रीजन सेलेक्ट करना है, उसके हम्म, बाद ही जो कुछ एक्टिविटी करनी है वो करना है आपको। जैसे S3 के लिए मैटर नहीं करता, बट हाँ S3 के लिए भी वो पब्लिक तो रहता है, बट आपको पहले रीजन तो सेलेक्ट करना है यहाँ से कि कौन से रीजन में आप डिप्लॉय करोगे। एवन आप टेराफॉर्म से भी जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको रीजन देना ही पड़ता है फिक्स, कि कौन से रीजन कोड में आपको वो डिप्लॉय करना है रिसोर्स। राइट। तो अभी जैसे अपन ने यहाँ पे वीपीसी क्रिएट किया और बाकी सब चीजें, तो उसमें जोन्स डिफाइन किए, तो वो अंडर मुंबई रीजन ही वो जोन्स डिवाइड होके कहीं होंगे या फिर कोई अलग, जैसे साउथ और नेमिंग उसमें है? देखिए, मुंबई मैंने इंट्रोडक्शन सेशन में बताया था कि रीजन क्या है और जोन क्या है। रीजन कैन बी योर सिटी और कंट्री, ओके। सिटी और एक जियोग्राफिकल लोकेशन बेसिकली। अब लेट्स से रीजन एज अ मुंबई है, ठीक है। अभी मुंबई में एक रीजन है AWS का, उसके अंदर आपका हो सकता है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हो, ओके। आपका ये A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया, जो भी है नाम नेमिंग कन्वेंशन, ओके। सो ये लोग अवेलेबिलिटी जोन्स अलग अलग क्यों रखते हैं? जस्ट टू मेक अ फेल ओवर मैकेनिज्म इन केस, अभी लेट्स से। और ये वन अवेलेबिलिटी जोन्स मींस वन फिजिकल डेटा सेंटर ऐसे होता है, ये कोई वर्चुअल सेटअप नहीं होता है, ये फिजिकल डेटा सेंटर होता है आपका खुद का। जैसे अभी इधर का दीघी में जो है TCL टाटा कम्युनिकेशन, ये वो एक डेटा सेंटर हो गया। हो सकता है दूसरा डेटा सेंटर उसी एरिया में हो या फिर कहीं अलग हो। अभी मुंबई में जो मुलुंड है या फिर ठाणे वगैरह, बाकी कहीं पे पता नहीं, सिक्योरिटी के हिसाब से वो एक्सपोज नहीं करते पॉसिबली लोकेशन। फोन आला ओके। हेलो सो ये अलग अलग। काय हो शरद म्यूट कर देगा। So yeah, just to make a failover, they will design their architecture. Okay. So ये जोन जो होता है अलग अलग लोकेशन पे होस्टेड रहता है उनका डेटा सेंटर, और बैकएंड से उनके इससे ये इंटरनेट कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर हाई नेटवर्क थ्रूपुट केबल जो होता है ना, फिजिकल केबल, उनसे वो एक दूसरे को कनेक्टेड रहता है। जब हम VPC सॉरी ये डिजाइन करते हैं ना, टू टायर आर्किटेक्चर, जैसे कि ये हमारा लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग EC2 बनाते हैं, राइट। EC2 यहाँ पे 1 हो गया, फिर दूसरा VPC EC2 हमने बनाया 2। हमने लोड बैलेंसर के सेक्शन में देखा था, राइट। अगर ये भी आपका फेलोर होता है कुछ नेटवर्क के हिसाब से, या फिर कुछ नेचुरल कोलैमिनिटीज होती है, या फिर कुछ भूकंप या कोई वॉर सिचुएशन है कि इस पे बॉम्ब गिर गया, तो क्या होगा? ये डेटा सेंटर तो उड़ गया ना आपका, ये वाला जो है। तो एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, जो 6 फ्रेमवर्क मॉडल है AWS का, वो दे विल सजेस्ट कि आप एक ही जोन में सब कुछ मत रखो, आप उसको फेलोर रखना कंपलसरी एज अ रिकमेंडेड वे। सो एक सर्वर आपका एक अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए, दूसरा वाला दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। अगर इसको कुछ होता है, लेट्स से कि ये डेटा सेंटर को, तो एटलीस्ट जो आपका दूसरा सर्वर चल रहा है दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से, तो एटलीस्ट वो तो वहां से तो आपका वेबसाइट और जो भी एप्लीकेशन है वो अप रहे, ताकि आपका बिजनेस इम्पैक्ट ना हो कोई। तो वो इस तरह से हम डिजाइन करते हैं हम्म, आर्किटेक्चर। तो इसीलिए ये VPC में जब हम जोन सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो वह वहीं से देता है वहां से। अभी मुंबई में 3 जोन है। अभी अगर आप नॉर्थ वर्जीनिया का देखो ना, मैं दिखाता हूँ आपको, आई थिंक 5 या 6 कुछ तो है। क्योंकि AWS जब कोई फीचर लॉन्च करता है तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वर्जीनिया इटसेल्फ। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। तो पहले वो जो भी चीज़ें है यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया में ही लाते हैं। यहाँ पे भी जोन कितने हैं कैसे देखना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं VPC में आता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ से नॉर्थ वर्जीनिया से सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है।
सर अगर ये जोन इनकरेक्ट सिलेक्ट हो गया जब हम क्रिएट करें पूरी प्रोसेस, तो उसका बैड इफेक्ट क्या होता है? एक तो इकोनॉमिकल तो समझ में आएगा, पर बाकी का कुछ होता है क्या उसका बैड इफेक्ट? जोन सेलेक्ट रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया तो आप वीपीसी जो हिसाब से बना रहे हो ना, अभी आपने लेट मी शो यू हियर, यहाँ पे आपको जोन दिख रहा है ए बी, ठीक है। आपने बी में पब्लिक सबनेट बनाया, प्राइवेट में आपने यहाँ पे प्राइवेट बना दिया। अभी प्राइवेट है, आपको डेटाबेस बनाना है, तो आपने अगर गलती से पब्लिक वाला सबनेट सेलेक्ट कर लिया यहाँ, तो क्या होगा? तो आपका डेटाबेस तो पब्लिक में बन जाएगा। तो वो चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तो ये जब अगर आप हमने डिजाइन। पूरा प्रोसेस किया और हमें बाद में समझ में आए कि सर ये गलत हुआ है, तो इसको रिपेयर कर सकते हैं क्या? या फिर एक बार हो गया तो हो गया, हाँ ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब जो ह्यूमन मिस्टेक्स होता है ना, तो आप उसको ये कर सकते हो ना, आपको इंफ्रा फिर से बनाना पड़ेगा। उसको चेंज नहीं कर सकते आप, एक बार रिसोर्स बन गया ना तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको फिर से ही वो बनाना पड़ेगा। Okay. वही थोड़ा इंफ्रा जब डिजाइन करते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अभी मैं अगर मैं ये करता हूँ, इसमें जो आपको सब अवेलेबिलिटी जोन दिखाना था, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, कितने 6 है लगभग। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि कितने अवेलेबिलिटी जोन्स है। ये एक ऑप्शन हो गया वीपीसी के अंदर सबनेट्स क्रिएशन प्रोसेस में जाके। दूसरा, अब जब हम सर्वर लॉन्च करते हैं EC2, वहीं से भी देख सकते हैं। अगर मैं EC2 सेक्शन में आता हूँ यहाँ पे, जब हम वहाँ पे वीपीसी और ये सेलेक्ट करते हैं ना, तो वहीं पे वो शो हो जाएगा। मैं नॉर्थ वर्जीनिया में अगर मैं लॉन्च करने का ट्राई करूँ ना, कुछ भी नाम दे सकते हो। आई विल नॉट सेलेक्ट एनीथिंग, जस्ट वीपीसी का सेक्शन मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी जोन्स जो सबनेट बना है ना डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर, यहाँ पे लिस्ट में आप देख सकते हो कि कितने हैं। तो ये दोनों तरफ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि कितने ये है अवेलेबिलिटी जोन्स रीजन के अंदर। मुंबई के अंदर 3 है। जब हम वीपीसी सेटअप करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कितने ये है अवेलेबिलिटी जोन्स। अभी हम इस पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। लॉगिन कैसे राइट, क्योंकि करते हैं? हम्म क्योंकि ये जब अपन ने लोड बैलेंसर या फिर टारगेट ग्रुप क्रिएट किया था, वहां पे कहीं तो भी ऑप्शन था, उसमें वो दिखा रहा था कि डिफॉल्ट मतलब अवेलेबिलिटी जोन भी सिलेक्ट करना है। तो मुझे 3 शो हुए थे, मैंने मुंबई रीजन सिलेक्ट किया था, तो मुझे तब मतलब माइंड में आया था कि ये 3 क्यों बता रहा है। मतलब हम्म। वो भी क्लियर हो गया कि मुंबई रीजन अवेलेबिलिटी जोन। हम्म। तो अभी ये हमारा लिनक्स बेस्ड बैश सर्वर है, तो आई विल जस्ट कनेक्ट। सो उसके पहले हमें जस्ट क्या चेक करना है, सिक्योरिटी ग्रुप में SSH पोर्ट ओपन है कि नहीं, ठीक है। जस्ट EC2 सर्वर पे क्लिक करने के बाद आपको सिक्योरिटी सेक्शन आएगा यहाँ पे। जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट एंड जस्ट ओपन इन अ न्यू टैब, ओके। देन जस्ट चेक द एंट्री फॉर द इनबाउंड रूल्स यहाँ पे, because yesterday we have created the Windows based server, so we have opened the RDP port। तो लिनक्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कैन एनीवन टेल मी, लिनक्स के लिए क्या पोर्ट ओपन करना पड़ेगा? विंडोज के लिए SSH हमें RDP से। SSH यस। 22 यस, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा एज इन द लिस्ट में है। तो अभी रियल टाइम आपको यहाँ पे एनीवेयर नहीं करना है, जस्ट VPN का जो भी रहेगा ऑफिस का IP एड्रेस वही रखना है। जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे एनीवेयर कर रहे हैं अभी, ओके। जस्ट सेव इट। So now we can just try to connect. Just copy the public IP address. Either we can go from the putty. शरद, पुट्टी का सेशन, सॉरी, डाउट क्लियर हुआ क्या? सर डाउट तो क्लियर हुआ, पर मैं पुट्टी डाउनलोड नहीं कर पाया अभी तक।
वो नहीं ये दिख सिंपल रहा। कल गणेश ने भी दिखाया ना आपको स्क्रीन शेयर करके, जस्ट हाँ वो दिखा। डाउनलोड पुट्टी करना है आपको। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है putti.org। अच्छा ये पहले तो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड करके, आपको कहीं जाना ही नहीं है ज्यादा। ये आज कर लूँ। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। कल नहीं कर पाया था, मैंने कोशिश की थी कल, आज कर लूँगा। थैंक यू सर। बट इनकी जो या फिजिकल डेटा सेंटर का जो सिक्योरिटी है ना बहुत टाइट रहती है, नॉर्मली एंट्री करना बहुत मुश्किल है। अभी यह दिल्ली का अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो डेटा सेंटर लगभग 1-1.5 किलोमीटर अंदर है, बट बाहर से सिक्योरिटी चेक्स वगैरह, और आपके मैनेजर या जो ओनर होता है कंपनी का, सॉरी ओनर नहीं, जो मैनेजर वगैरह होता है ना, उसका मेल चाहिए होता है आपके नाम से कि इस एम्प्लॉय को एंट्री करना है। ओके, और यू शुड हैव योर एम्प्लॉय का आईडी कार्ड। मेल होने के बाद ही आपको एंट्री दी जाती है डेटा सेंटर के अंदर, और फिर अंदर जाके आपका बैग चेक और बाकी सब चीजें वहां पे स्कैन होता है। सर अंदर में आप गोल्ड भी नहीं लेके जा सकते, बेल्ट नहीं पहन के जा सकते। बेल्ट का तो नहीं, मैं इधर 2 साल था ना टीसीएल में, इधर दिगी लोकेशन में डेटा सेंटर है। बेल्ट का क्योंकि तो उतना कोई चेक नहीं किया, बट मैं माइक्रोसॉफ्ट में जब अच्छा था हाँ ना, माइक्रोसॉफ्ट के हाँ अंदर हाँ मैं हाँ। डेटा जब जाता था ना, तो हम्म, गोल्ड का चेन वगैरह जो भी था वो भी निकाल के बाहर रखना अच्छा पड़ता था। और वहां पे एक लॉकर दिया जाता था, वहां से लॉकर से ही पूरा का पूरा करना है अपने को, जो भी बेल्ट हाँ वगैरह भी नहीं हाँ, मतलब अलाउड है। ओवरऑल हाँ सिक्योरिटी वाइज बहुत स्ट्रिक्ट रहता है वहाँ पे, क्योंकि डेटा सेंटर मतलब मैनेज करना बहुत रिस्की है ना। अगर कुछ ने कुछ गलत चीजें ले जाके डेटा कॉपी किया या कुछ माल फंक्शन कर दिया तो क्या होगा। कंप ऑब्वियसली डेटा तो लॉस होगा ही वहाँ पे, बट ट्रस्ट चला जाएगा ना, जो आप जिस ट्रस्ट पे आप बिजनेस कर रहे हो। और इनके पास 1 मंथ का पावर बैकअप होता है। मैं जस्ट यहाँ का बता रहा हूँ टीसीएल का, बाकी माइक्रोसॉफ्ट का तो ज्यादा रहेगा। अगर पावर फेलियर भी होता है मेजर तो उनके पास उतना बैकअप रहता है, खुद का नेटवर्क स्टेशन वगैरह, पावर स्टेशन। और अभी यहाँ तो इन लोगों ने वो सोलर सिस्टम भी लगा दिया है जो दिल्ली में है। ओके, तो हमें पुट्टी से, ठीक है, तो शरत यहाँ पे अब जस्ट पुट्टी आपने ओपन किया ना, यहाँ पे आपको पहला क्या करना है, होस्ट नेम में आपका जो बैशन सर्वर है ये वाला, इसका आईपी एड्रेस कॉपी करना है, ठीक है। इधर चलो इधर, आईपी एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन ये वाला जो लेफ्ट साइड में एसएसएच ऑप्शन है, जस्ट एक्सपांड इट। ओके, फिर से यहाँ पे ऑथ बटन है, उसको एक्सपांड करना है। क्रेडेंशियल्स यहाँ पे है, ठीक है। क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्राइवेट की आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जस्ट ब्राउज करो, और डाउनलोड में हमने जब की जनरेट की तो वह कहाँ पे स्टोर हो गया था, डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पे। तुम यहाँ से उसको फिर से ब्राउज करके वो वाला जो है की पेर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, डेमो बैशन EC2 लिनक्स। अभी हो सकता है रियल टाइम पे आपके पास बहुत सारे सर्वर्स हो, ओके, फिर यू आर नॉट श्योर कि विच की पेयर आई नीड टू सेलेक्ट। ओके, तो आप की पेयर का नाम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जस्ट सर्वर, जो भी सर्वर पे आपको कनेक्ट करना है जस्ट सेलेक्ट ऑन दैट। ओके, और यहाँ पे डिटेल्स में थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यू विल गेट दैट की पेयर नेम। यहाँ पे देखिए की पेयर असाइन एट लॉन्च, ठीक है। ये वाला फिर नाम कॉपी करके आप जो भी आपके पास लिस्ट होगा वो सर्च करके वो अटैच कर सकते हो आप, ठीक है। अभी इसको मैं अटैच कर लेता हूँ, और मेक श्योर कि ये पुट्टी का वर्जन लेटेस्ट ही हो। कभी कभी वो कॉम्पेटिबिलिटी का इशू आता है और आपको एरर दे देगा, कनेक्शन रिफ्यूज वगैरह, सो डोंट बी कंफ्यूज। ये जो पुट्टी का वर्जन है ऑलवेज मेक श्योर कि इट्स अपडेटेड वन, ठीक है। अभी जस्ट मैं इसको कनेक्ट करूंगा यहाँ से। यहाँ पे और एक चीज मुझे दिखाना था आपको। अभी हम नॉर्मली अगर हम यहाँ पे, तो हमने आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है, आईपी एड्रेस दे दिया, एसएसएच में हमने की पेयर दे दिया, यहाँ पे एसएसएच के अंदर ऑथ में क्रेडेंशियल्स पे की पेयर दे दिया। अभी इसके बाद क्या होगा, हमें क्या पूछेगा, वो यूजर नेम पूछेगा, राइट, यहाँ पे। अभी इस चीज को भी हम थोड़ा सा ऑटोमेट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट्टी में ऑप्शन है। मैं फिर से वो आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, एसएसएच ऑथ क्रेडेंशियल्स में जाके जस्ट अटैच दैट की पेयर, और यहाँ पे आपको ना
एक ऑप्शन मिलेगा डेटा में, कनेक्शन के अंदर डेटा, ऑटो लॉगिन यूजर नेम। ओके, अभी इन दी AWS उबंटू जो इमेज हमने लिया था OS, उसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रहता है उबंटू। ठीक है, अगर Amazon लिनक्स आप वहां से सेलेक्ट करते तो उसका यूजर नेम रहता EC2-user, ऐसा। ठीक है, सो वी हैव सेलेक्टेड उबंटू, सो वी कैन जस्ट गिव द यूजर नेम डिफॉल्ट उबंटू वाला। ठीक है, अभी यहाँ से आपको या तो इस सेशन को सेव भी कर सकते हो आप, डेमो बैशन, मतलब बार बार आपको IP एड्रेस वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नाम दे दीजिए और यहाँ से इसको सेव कर लीजिए, तो वो सेशन हमेशा सेव हो जाएगा। अगर मैं अभी पुट्टी क्लोज भी करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ, तो आई विल गेट दैट। ओके, फिर से इसको लोड करना है और कनेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे फिर से बार बार यूजर नेम नहीं पूछेगा यहाँ पे। सो कोई भी सर्वर लॉन्च करने के बाद हम पहले क्या करते हैं, फॉन्ट छोटा दिख रहा है क्या बहुत? सर फॉन्ट साइज थोड़ा वाढवा सा, ना थोड़ा। हाँ एक मिनट। अभी या इससे और थोड़ा सा बड़ा करूँ? ठीक है सर। ये ठीक है। ओके, सो फर्स्ट यू कैन जस्ट मेक अ sudo su, मतलब उसको रूट प्रिविलेजेस में एंटर करने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार आप sudo su ही करो, नॉर्मल इसमें उबंटू में भी आप काम कर सकते हो, बट कुछ पैकेज वगैरह इंस्टॉलेशन करने के लिए यू हैव टू यूज sudo कमांड ऑप्शंस फॉर द रूट प्रिविलेजेस। ओके, मैं ये जस्ट बार बार वो sudo यूज ना कर किए, इसलिए मैं जस्ट sudo su कर देता हूँ। स्विच यूजर है, स्विच यूजर ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। अभी जब नॉर्मली हम कोई भी अभी लेट्स से जस्ट टेक एग्जांपल ऑन द विंडोज मशीन, सो हम पहले इंस्टॉलेशन वगैरह करने के बाद पहले क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, राइट? अपडेट हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब भी ये OS बना होगा AWS के अंदर और वो अवेलेबल हुआ होगा, उसके बाद के जो भी चेंजेस है, वर्जन, माइनर वर्जन, मेजर वर्जन, उसको अपडेट करने के लिए हम ये अपडेट करना पड़ता है। अभी ये उबंटू है इसलिए हम apt-get यूज कर रहे हैं, अगर लिनक्स वगैरह होता, मतलब सेंटोस वगैरह, तो ये हम अपडेट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसको जस्ट अपडेट करते हैं ताकि माइनर वर्जन वो अपडेट हो जाए। इट विल नॉट टेक टू मच टाइम। अगर आपने सेंटोस पे काम किया होगा और उबंटू पे काम किया होगा तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। उबंटू में जो पैकेजेस वगैरह है वो थोड़ा लेटेस्ट और जल्दी मिल जाते हैं। सेंटोस भी स्टेबल ही है, बट थोड़ा सा कर्नल वर्जन और बाकी सब चीज़ें थोड़ा सा उसमें। अभी यहाँ पे हमने apt अपडेट कर लिया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर RDS डेटाबेस कनेक्ट करना है तो हमें लगेगा MySQL का क्लाइंट। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट तो इसमें है नहीं, तो वी नीड टू इंस्टॉल इट। लेट्स सी कि वो बाय डिफॉल्ट रेपो के अंदर है कि नहीं। जस्ट apt-get इंस्टॉल, ये जस्ट इंस्टॉलेशन का कमांड है। विंडोज में तो जस्ट exe पे डबल क्लिक किया तो वो ग्राफिकल विजार्ड आ जाता है नेक्स्ट करने का, बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं आता। यहाँ पे ये कमांड लाइन ही खेलना पड़ेगा पूरा। ठीक है, पहले सर्च कर लेते हैं, इसका सर्च का कमांड क्या है। apt, एक मिनट है। क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम MySQL कमांड लाइन एक्सेस कर पाएंगे। इससे होता है क्या, देखते हैं। ठीक है, मिल गया उसको। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हो रहा है। MySQL सर्वर 8.0। ओके, तो इसको हम यस कर देते हैं यहाँ पे।
शरद कैसा लग रहा है कमांड लाइन? डेवऑप्स में आना है तो यही करना पड़ेगा। विंडोज हर जगह पे नहीं मिलता रियल टाइम पे। सीखना तो पड़ेगा सर, हम्म। इसके सिवा मजा नहीं आएगा। मजा तो तभी आएगा ना सीखेंगे। तो कुछ नहीं, जस्ट 1-2 महीना थोड़ा सा एफर्ट दो, ज्यादा तो हो जाएगा वो। इनिशियल पीरियड में थोड़ा सा लगता है कि जमेगा कि नहीं, बट एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा जम्बलिंग होता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ते जमण्याचा मोरली विषय डाउन हो नाही, जाए। काय होतं हम्म। जॉब आणि हे करता करता ते त्याला वेळ काढायला थोडासा प्रॉब्लेम येतो, पण मागं लागल्यावर होऊन जाईल ते. मी त्या म्हणतो कारण जेव्हा जेव्हा वेळ मिळतो मी तुम्हाला फोन करून हाँ, विचारतो, सर इथं काय करायचं तिथं काय, नाही समजलं तर विचारून नाही घेईल. मला मेसेज करायचा टू बी फ्रँकली, कारण हम्म. मी ऑफिसमध्ये वगैरे असतो ना, तर कॉल पिक नाही करत अनलेस वीकेंड. जस्ट मेसेज जरी केला बरोबर. ना, तर मी ज्यावेळेस अवेलेबल असेल ना, मी त्यावेळेस आयदर कॉल करेल किंवा रिस्पॉन्ड करेल. काय काय काही प्रॉब्लेम नाही सर, करेन शिकेन, तर मै- केल्याशिवाय होणार नाही. हम्म, ठीक है। अभी माइसिकल इंस्टॉल हो गया है, तो जस्ट माइसिकल का प्रॉम्प्ट आ रहा है अगर हम टैप करते हैं इसको, ठीक है। अभी हमें कनेक्शन के लिए कमांड क्या होगा, माइसिकल स्पेस -h करना है यहाँ पे, ओके। उसके बाद RDS का एंड पॉइंट देना है, जो हमने कल वर्कबेंच में वहाँ पे अपडेट किया, ऐड किया था। उसके बाद यूजर नेम एंड देन पासवर्ड। बट उसके पहले हमें एक सेटिंग करना है, इफ़ यू रिमेम्बर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस तो होगा नहीं, ये बैशन सर्वर से। तो डेटाबेस में हमें क्या करना पड़ेगा, पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, राइट। बाकी विंडोज में क्लोज करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। डेटाबेस ये वाला है, इसको ओपन करके यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप में आता हूँ मैं, इसको सिक्योरिटी ग्रुप में राइट क्लिक करके ये ओपन कर देता हूँ। उसके इनबाउंड रूल्स में विच पोर्ट वी नीड टू ओपन, माइस्क्ल, राइट। सो यहाँ पे हमने कल विंडोज सर्वर का IP दिया था, इफ यू रिमेम्बर, ओके। सो टुडे हम क्या करेंगे, इसको विंडोज मशीन का नहीं, अभी जो लिनक्स बेस हमने बनाया है ना, उसका प्राइवेट IP जो है ये ऐड कर देंगे, ठीक है, उसके जगह पे। और /32 सिंगल IP के लिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हो बैशन EC2, ठीक है, एंड जस्ट सेव इट। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट कॉपी दिस एंड पॉइंट, कॉपी। उसके बाद वापस पुट्टी में आना है आपको, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ये एंड पॉइंट बड़ा दिखेगा आपको। उसके बाद -u, -u किस लिए, यूजर नेम के लिए, ओके। विच यूजर नेम वी हैव क्रिएटेड, एडमिन, राइट। देन द पैरामीटर ऑप्शन इज -p, -p किस लिए है, पासवर्ड के लिए। नाउ इफ यू जस्ट एंटर इट, ही विल आस्क द पासवर्ड, ओके। अभी पासवर्ड मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, बट इट विल नॉट शो बिकॉज इट्स अ लिनक्स सिक्योरिटी फीचर। यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दिया है मैंने, अभी मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड का, सॉरी, माइस्क्ल प्रॉम्प्ट आ गया। इफ आई रन दिस कमांड नाउ, जो हमने कल वर्कबेंच में ये किया था, एग्जीक्यूट किया था, शो डेटाबेसेस, राइट। तो इट विल शो दी डेटाबेस। ये हमने डेटाबेस कल बनाया था, दो वाले, डेमो DB और ये डेवऑप्स DB। अगर मैं फिर से यहाँ से बनाता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम देंगे लाइक डेमो डेवऑप्स बैच, जो भी आपको देना है, ठीक है। अच्छा, वो नाम नहीं आता, ठीक है, ठीक है। अभी मैं फिर से शो डेटाबेस करता हूँ, तो वो डेटाबेस मुझे दिखेगा यहाँ पे, सी डेवऑप्स, डेमो डेवऑप्स बैच, ओके। इस तरह से आप वो बाकी जो ऑपरेशन है वो कर सकते हो। अभी इससे बाहर आना है तो मैं जस्ट सिंपली एग्जिट करता हूँ, इससे बाहर आ जाऊंगा। अब यहाँ से अगर मैं इसको सिक्योरिटी ग्रुप से अगर हटा देता हूँ पोर्ट, तो आई विल नॉट एबल टू कनेक्ट, ओके हियर। इसको सिक्योरिटी ग्रुप से मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, सेव कर देता हूँ। इफ आई अगेन ट्राई टू कनेक्ट, से इट विल नॉट कनेक्ट,
See, it will take too much time and he will give the error. ये क्लियर है सबको या कुछ डाउट है? मेरे लिए तो क्लियर है। ओके सर प्रॅक्टिकल करून बघितल्यावरच होईल ते. माझ्यासाठी थोडंसं डाऊटफुल आहे, पण मी करून बघतो आणि मग सांगतो सर. येस येस डेफिनेटली. पुढच्या याच्यापर्यंत 5 दिवस आहे ना जवळपास. 5 दिवस इज व्हेरी सफिशियंट. याचं प्रॅक्टिकल केलं का AC2 लोड बॅलन्सरचं? शरद आज शरद आज आज होईल ते. आज शरद होईल आज सर. फ्री आहे का? हा गणेश बोलतोय, आज फ्री आहे का? हा आज करेन मी ते. एक काम करूया, सोबत बसू. चालेल, नो इश्यू. चालेल. हा थोडंसं कम्युनिकेशन वाईज आणि ते हम्म. तुम्हाला बेनिफिट होईल त्याचं. हा ना, आज आहे फ्री मी. आज बसू आपण. मी तेच म्हणेल की पाठीमागचे जे असाइनमेंट आहे ना ते पेंडिंग नका ठेवू, कारण मग ते कळणारच नाही पुढचं जसं बॅच पुढे जाईल. हे तर जस्ट क्लाउड आहे, पुढे अजून टेराफॉर्म आहे, डॉकर वगैरे आहे, ते तर मग ते डोक्यावर जाईल. त्यापेक्षा आहे ते हिशोबाने फ्लो मध्ये चाललं ना तर थोडंसं सिंक मध्ये राहील प्रॉपर. चालेल ना सर. ठीक आहे. इट्स टेकिंग टू मच टाइम, दॅट मीन्स ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट, और वी कॅन जस्ट चेक विथ बाय टेलनेट कमांड. टेलनेट आहे का इन्स्टॉल? यस, टेलनेट इज देअर. टेलनेट आपण ना पोर्ट ओपन आहे की नाही चेक करायला यूज करतो एखादं. आता इथून मी एंड पॉईंट कॉपी करतो वापस. ओके, एंड देन पोर्ट नंबर 3306, जिस सर्विस पे हमें कनेक्ट करना है उसका पोर्ट नंबर. सो यू कैन सी इट्स जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट, so it will failure after a few seconds. तो साइड बाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर से डेटाबेस का सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करके फिर से वो बैशन सर्वर का आईपी ऐड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ. ठीक है. MySQL यहाँ से लिस्ट से सेलेक्ट करना है MySQL. ठीक है. देन दिस आईपी एड्रेस एंड उसके पहले देख लेते हैं कुछ आउटपुट आया क्या. कुछ आउटपुट नहीं है. इट्स टेकिंग टू मच टाइम, राइट. तो इसको अभी मैं सेव कर देता हूँ. सेव हो गया. अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ, सी इमिडिएटली रिस्पॉन्स आ गया. तो इस तरह से आप सिक्योरिटी ग्रुप मैनेज कर सकते हो जस्ट टू ओपन फॉर द स्पेसिफिक सर्वर. अगर ये बैशन सर्वर की जगह पे लेट्स से कि आपका कोई वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर, जहाँ पे आपका फ्रंट एंड होस्टेड है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप सेम सेटिंग कर सकते हो डेटाबेस के लिए कि उसी का स्पेसिफिक आईपी एड्रेस आप यहाँ पे डेटाबेस के सिक्योरिटी ग्रुप में दीजिए इनबाउंड रूल्स में. ओके, जस्ट फॉर द मोर सिक्योर वे. सेकंड ऑप्शन ये है, अभी तो ये हमने सिंगल आईपी दिया, राइट. अगर हम जाते हैं वीपीसी सेक्शन में, ये थोड़ा सा मैं एडवांस दिखा रहा हूँ इनकेस कभी कुछ इंटरव्यू में आता है एक क्वेश्चन, तो वीपीसी में आना है आपको, या फिर क्या करना है, सेकंड ऑप्शन ये है कि इस डेटाबेस सॉरी सर्वर को सेलेक्ट कर लीजिए. ठीक है. जस्ट गो लिटिल बिट डाउन, यू विल सी दिस सबनेट आईडी हियर. ओके, सबनेट आईडी, इसको राइट क्लिक करके ओपन कीजिए. हम सबनेट लेवल पे भी ट्रैफिक ओपन कर सकते हैं. ठीक है. ये सबनेट का जो भी ये रहेगा, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ. सबनेट आईडी दिख रहा है यहाँ पे आपको. सबनेट आईडी या फिर इसका एक आईपी का रेंज होगा ना, ये वाला. ठीक है. ये भी डायरेक्टली हम ओपन कर सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर. ठीक है. ये वाला डेमो बैशन सर्वर डेटाबेस का कौन सा है, इसको ओपन करता हूँ मैं राइट क्लिक करके.
इसके इनबाउंड में आई विल रिमूव दिस, ओके। उसकी जगह पे मैं सेम सेम पोल MySQL का पोर्ट, अभी हम यहाँ तक सिंगल बैशन सर्वर का आईपी देते थे, राइट, फॉर द स्पेसिफिक सर्वर एक्सेस। अभी हम अगर वैसे सबनेट लेवल पे भी हम दे सकते हैं। ये मैंने पूरा सबनेट सबनेट का रेंज यहाँ पे ऐड कर दिया सिक्योरिटी ग्रुप में, ठीक है। इससे होगा क्या, उस सबनेट पे जितने भी रिसोर्स बने हैं, मे बी योर वेब सर्वर और दूसरा कोई EC2 सर्वर्स, वो सारे इस पे कनेक्ट कर पाएंगे डेटाबेस को ऑटोमेटिकली। आपको इंडिविजुअल सर्वर का आईपी देना नहीं है, ये जस्ट एडिशनल पॉइंट है। सिक्योरिटी वाइज तो आपको स्पेसिफिक सर्वर ऐड का आईपी ही ऐड कर सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड ऑप्शन इज यू कैन ऐड दी सबनेट रेंज, कंप्लीट रेंज, ओके। सो उस सबनेट पे जितने भी रिसोर्स बने होंगे आपके वेब सर्वर या कोई और डेटाबेस सर्वर या जो भी है, तो वहां से भी आप उस डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर पाओगे। अभी मैं यहाँ से फिर से चेक करता हूँ। सी, अभी मैंने कोई बैशन सर्वर का आईपी नहीं डाला यहाँ पे, पूरा सबनेट सबनेट का जो भी रेंज है वो पूरा डाल दिया यहाँ पे। तो आप उस सबनेट पे जो भी रिसोर्स क्रिएट करोगे, मल्टीपल डेटाबेस सर्वर, सॉरी वेब सर्वर, आपका फ्रंट एंड, तो वो वहीं से भी आप कनेक्ट कर पाओगे। और VPC लेवल पे देना है तो आप VPC का भी रेंज दे सकते हो। जो आपका VPC रहेगा, यहाँ पे इसको राइट क्लिक कीजिए, या सर्विसेज में जाके VPC सेलेक्ट कर सर्च कर सकते हो। ये वाला VPC का जो ये रेंज है ना, ये भी आप दे सकते हो। तो क्या होगा, उसमें जितने भी सबनेट्स है सारे को एक्सेस मिल जाएगा। बट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस ये रियल टाइम में मत करना। ये जस्ट मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए जस्ट एडवांस ऑप्शन बता रहा हूँ यहाँ पे। जस्ट मेक श्योर कि पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ही वहाँ पे ऐड हो। जैसे अभी बैशन सर्वर का ये सिंगल आईपी है, राइट, तो ये जस्ट इतना ही वहाँ पे ओपन करना। एनी डाउट स्टिल नाउ, VPC में, सबनेट में, या फिर ये बैशन सर्वर टू RDS कनेक्शन? ठीक है, मैं एक एडवांस चीज आपको एक जस्ट दिखाना चाहता हूँ टुडे कि ये जस्ट मैंने मेरे फ्रेंड से सुना था कि जो हमारा, एक मिनट यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं भी वो चेक करना चाहता था, बस सोचा कि चलो आपके साथ ही चेक कर लेता हूँ। ये वैसे ये बैच का पार्ट नहीं है, बट एडिशनल है, क्योंकि रियल टाइम में जब आप स्केलेबल आर्किटेक्चर बनाओगे ना, सिक्योर वगैरह, तो वहाँ पे ये चीज काम आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपका हो गया लोड बैलेंसर। ठीक है, ये लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर के अंदर आपका EC2 इंस्टेंस है, EC2 1, दूसरा EC2, okay, whatever, there might be a multiple EC2 servers, okay, for now we can go with the single server, okay, to set up। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या देखा कि आपका जो वेब सर्वर है वो कहाँ पे होना चाहिए, पब्लिक सबनेट में, राइट, पब्लिक सबनेट में, ताकि ये हमें इसका, इस पे जो भी एप्लीकेशन होस्टेड है वेबसाइट, वो हमें एज ए एंड यूजर हमें बाहर से एक्सेस हो, राइट। और लोड बैलेंसर आपका बाय डिफॉल्ट पब्लिक सबनेट में ही होना चाहिए, अगर आप बाहर से एक्सेस करवाना चाहते हो तो, ठीक है, एज एंड यूजर, मतलब हमारे जैसे कस्टमर, ठीक है। बट अभी इस केस में हमें हमें क्या करके देखना है, ये हमारा जो EC2 सर्वर है ये रहेगा प्राइवेट सबनेट में, ठीक है। हम इसको पब्लिक सबनेट में नहीं लॉन्च करेंगे, ठीक है, इसको रखेंगे हम प्राइवेट सबनेट में। इस पे जो भी वेबसाइट्स वगैरह है, फॉर टेम्पररी वी कैन इंस्टॉल दी Nginx सर्वर, ओके, जो हमने EC2 सेक्शन और लोड बैलेंसर में देखा था। Nginx का पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करके इसको अप करेंगे एक सर्वर पे, इसको रखेंगे हम प्राइवेट पे, ठीक है, प्राइवेट सबनेट। और इस ऑन द टॉप ऑफ दिस लोड बैलेंसर जो बनेगा वो बनेगा पब्लिक सबनेट में, ठीक है। और फिर इसका राउटिंग वगैरह हम ऐड करके, टारगेट ग्रुप ऐड करके, वी विल सी कि ये वर्क होता है कि नहीं, ठीक है। किसने ऐसा सेटअप देखा या किया है क्या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में या फिर पर्सनल? एनीवन?
ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस सिक्योरिटी वाइज है, क्योंकि आपका डेटा यहाँ पे सर्वर भी आपका पब्लिक नहीं रहेगा, सर्वर भी आपका रहेगा प्राइवेट में। ठीक है, जस्ट आपको लोड बैलेंसर बाहर से पब्लिक करना है, ताकि जो भी ट्रैफिक आए वो जस्ट पब्लिक सबनेट पे यहाँ पे आए, लोड बैलेंसर पे आए। फिर इंटरनली जो है, जब हम सिक्योरिटी ग्रुप से मैनेज करेंगे ना, वो ट्रैफिक सिर्फ प्राइवेट इस पे आ जाए यहाँ पे। ठीक है, प्राइवेट इस नेटवर्क पे, ये जो सर्वर्स है। तो लेट्स सी। इस बैशन सर्वर को हम डिलीट कर देते हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। डिलीट कैसे करना है, उससे पहले सर्वर को सेलेक्ट करना है, जस्ट टर्मिनेट इट, जस्ट टर्मिनेट। ओके, डेटाबेस को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि वो बिल ना आए अननेसेसरी। डेटाबेस को कैसे डिलीट करना है, एक्शन से डिलीट ऑप्शन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जस्ट डिलीट मी, जस्ट कंफर्मेशन दे दीजिए, जस्ट डिलीट इट। ओके, वो जस्ट पूछेगा बैकअप वगैरह लेना है क्या, तो वी डोंट नीड बैकअप एज इट्स डेमो सर्वर। ये मैं डिलीट में कैसे टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे यहाँ पे लिखा है। ओके, टू कंफर्म डिलीशन टाइप डिलीट मी इन द फील्ड। ओके, और इसको जस्ट डिलीट कर देना है। गणेश, आपका AWS अकाउंट एक्टिवेट हो गया क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही, या मैं म्यूट पे बोल रहा हूँ? नहीं, म्यूट तो है। हाँ, आ रही है। ओके, ठीक है, ये वाला चीज क्लियर है क्या, कि मतलब हम क्या करने जा रहे हैं? एनीवन एनी डाउट? हाँ सर, एक बार वापस उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो देखिए, नॉर्मल हमने अभी तक जो देखा ना, जो हमने इसमें किया था लास्ट सेशन में, जो डेमो प्रैक्टिकल किया था, लोड बैलेंसर हमने पब्लिक वाला लोड बैलेंसर बनाया था यहाँ पे। ठीक है, और जो सर्वर भी हमने उसके साथ लॉन्च किया था EC2, वो भी हमने कहाँ पे लॉन्च किया था, पब्लिक सबनेट पे, राइट? पब्लिक सबनेट पे जब हम वहाँ पे लॉन्च कर रहे थे, VPC आपने सेलेक्ट किया, देन आपने क्या सेलेक्ट किया वहाँ पे, पब्लिक सबनेट सेलेक्ट किया। बट अभी इस प्रैक्टिकल सेशन में जो 3 टायर आर्किटेक्चर होता है ना सिक्योर वे में, वहाँ पे ये EC2 बनेगा अभी प्राइवेट सबनेट के अंदर, पब्लिक के अंदर नहीं बनेगा ये। ठीक है, उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट जो लोड बैलेंसर बनेगा, दैट शुड बी ऑन दी पब्लिक सबनेट, पब्लिक वाला। सो जो एज ए एंड यूजर जो एप्लीकेशन URL हिट करेगा, वो लोड बैलेंसर पे आएगा। ठीक है, फिर लोड बैलेंसर इंटरनली ट्रैफिक मैनेज करके वो प्राइवेट वाले सबनेट पे ट्रैफिक राउट करेगा, और रिक्वेस्ट रिस्पांस वापस यूजर को देगा। मतलब यहाँ पे जो सर्वर हम पब्लिक में बना रहे थे अभी तक, वो ये भी वाला चीज पब्लिक नहीं रहेगा, ये भी सिक्योर मतलब प्राइवेट सबनेट में रहेगा ये प्रैक्टिकल हमें करके देखना है। ठीक है, ओनली लोड बैलेंसर विल बी इन दी पब्लिक सबनेट। ठीक है ना? प्रीवियसली ये लोड बैलेंसर प्राइवेट में था ना सर? नहीं, पब्लिक ही था वो। अच्छा, तो ये हमेशा पब्लिक ही रहता है या फिर प्राइवेट में भी होता है? नहीं, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है प्रोजेक्ट का। अगर एप्लीकेशन एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब क्या, जैसे अभी हम ये वेबसाइट यूज कर पा रहे हैं, google.com या facebook.com या फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी है, ये पब्लिक है, इसको एज ए एंड यूजर हमें एक्सेस करना है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इसलिए पब्लिक मतलब हम बाहर से एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर हम जो लोड बैलेंसर बनाते टाइम अगर वो एप्लीकेशन इंटरनल है, इंटरनल मतलब क्या, आपके विद इन AWS नेटवर्क के अंदर एक्सेस करना है, तो हम वो वाला वैसे कर सकते हैं, प्राइवेट वाला। तो आई विल शो यू दैट पार्ट, कि यहाँ पे जब लोड बैलेंसर हम बनाएंगे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन है पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है। ठीक है, तो हम पहले सर्वर बना लेंगे यहाँ पे, लिनक्स सर्वर। यहाँ पे हम इसको नाम देंगे डेमो EC2
लिनक्स प्राइवेट, इसको प्राइवेट नाम देते हैं। यहाँ पे मैं अमेजोन लिनक्स सर्च कर सेलेक्ट कर रहा हूँ ओएस। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो ही रहेगा। की पेयर ले सकते हैं जो अभी मैंने डाउनलोड किया था डेमो बैशन वाला, ठीक है। अभी नेटवर्क सेटिंग में वो ऑप्शन है, जस्ट सेलेक्ट दिस VPC डेमो डेवऑप्स VPC, ठीक है, डेमो डेवऑप्स VPC। अभी यहाँ पे जब हम पब्लिक, मेरा वॉइस विको हो रहा है, रोहन हे करा ना म्यूट। ओके, सो यहाँ पे पब्लिक सबनेट नहीं लेना है आपको, यहाँ पे लेना है प्राइवेट वाला, ठीक है। प्राइवेट वाला जो ये हमारे पास ये है जिसको इंटरनेट एक्सेस नहीं है, ठीक है, डेमो डेवऑप्स सबनेट प्राइवेट 1, ठीक है। नॉर्मली हम इसके पहले जो भी लॉन्च किया था वो हमने क्या सेलेक्ट किया था यहाँ पे, पब्लिक वाला, ठीक है, लास्ट टाइम जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा। तो दिस टाइम वी विल सेलेक्ट प्राइवेट 1। प्राइवेट के लिए हमें इसके लिए पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है, सो वी कैन मेक इट डिसेबल, वो ऑटोमेटिकली खुद ले लिया उसने डिसेबल करके, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप वी कैन सेलेक्ट एग्जिस्टिंग वन, वी डोंट नीड टू क्रिएट सेपरेट फ्रेश वन नाउ, ओके। देन नेटवर्क सेटिंग में भी कुछ नहीं करना है हमें, सिंपली इसको लॉन्च करना है, ठीक है। ठीक है, लॉन्च हो गया। अभी यू माइट कम द क्वेश्चन लाइक कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये प्राइवेट सर्वर है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो अभी डायरेक्टली हमें तो इसको कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि बाहर से एक्सेस होगा ही नहीं, है प्राइवेट में है, तो अभी इसको कैसे एक्सेस करना है? कैन एनीवन केस प्राइवेट सर्वर को एक्सेस कैसे करना है? ये बेस्टिन सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा। यस यस यस, जैसे डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट किया ना, सेम कंसेप्ट, तो तुरंत फटाफट हमें क्या है, वॉइस कट हुआ है। फिर से बताओगे क्या, वॉइस कट हो गया? पता नहीं किसका आवाज था। सिद्धार्थ का शायद है, ठीक है। यहाँ पे हम एक बैशल सर्वर बना लेते हैं पब्लिक सबनेट पे। ये मैंने किया हुआ क्या हुआ है क्या आपने? आवाज ब्रेक हो रही है इसलिए पता नहीं चल रहा क्या है। ठीक है, बैशल सर्वर आप उबंटू पे भी बना सकते हो, इशू नहीं है। यहाँ से जस्ट मैं क्या करता हूँ, डेमो बैशल सर्वर वो जो कीपैड है वो वाला सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, नेटवर्क सेटिंग। अभी नेटवर्क सेटिंग्स पे यहाँ पे आपको क्या करना है, डेमो वीपीसी तो सेलेक्ट करना ही है, ठीक है। डेमो वीपीसी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेन चीज है, यहाँ आपको बैशल सर्वर आपको जैसे हमने बनाया था पब्लिक पे रखना है ये वाला। अगर ये वाला प्राइवेट रखोगे तो फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। पब्लिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, जस्ट वही वाला सिक्योरिटी ग्रुप आप सेलेक्ट कर लीजिए, डेमो बैशन वाला, ठीक है। देन जस्ट सिंपली लॉन्च इट, ओके। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या?
नहीं। तो बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं अभी, अभी थोड़ा इनिशियल सेटअप दिखा देता हूँ। ये हमारा बैश सर्वर हो गया जो कि पब्लिक सबनेट में है, ठीक है। पब्लिक सबनेट में हमारा ये बैश सर्वर है, ठीक है। यहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं प्राइवेट वाला वेब सर्वर जो है प्राइवेट पे, ठीक है, जो है लिनक्स बेस, ठीक है। ये पहले ये कनेक्टिविटी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद फिर उसको यहाँ पे वेब सर्वर पे हम यहाँ से कनेक्ट करने के बाद आगे वाला सेटअप देखेंगे, ठीक है। ठीक है, डेटाबेस तो डिलीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बैशन सर्वर बन गया, मतलब इनिशियलाइज हो रहा है, और प्राइवेट सर्वर तो ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। अब डायरेक्टली तो हम प्राइवेट सर्वर पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बैशन सर्वर पे लॉगिन करेंगे पुट्टी से, ठीक है। ये मैंने आईपी कॉपी कर लिया। सेम प्रोसेस, जस्ट पुट्टी ओपन कीजिए यहाँ पे। देन एसएसएच के अंदर से आपको ऑथ में जाना है, क्रेडेंशियल से वो की पेयर ऐड करना है यहाँ से, ठीक है। डेमो वाला ऐड कर लिया, और यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जस्ट फर्स्ट टाइम फिंगरप्रिंट एक्सेस पूछेगा, यस कर दीजिए। और ये बैशन सर्वर हमने किस पे बनाया था, उबंटू पे, ठीक है। फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे ये। ठीक है, फॉन्ट साइज ठीक है ना? यस। ओके। सो अभी हम जस्ट बैशन सर्वर पे है, इसको मैं जस्ट सुडो सु कर लेता हूँ, जस्ट टू मेक अप रूट प्रिविलेजेस। अभी यहाँ से अपने को एक्सेस करना है प्राइवेट वाला सर्वर, ठीक है। कौन सा वाला सर्वर? प्राइवेट वेब सर्वर, ओके। इसको हमें एक्सेस कैसे मिलेगा? डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं मिलेगा, पहले तो इसका ये चेक कर लेते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप। ये वाला, इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए, ठीक है। और मीन टाइम क्या करना है, बैशन सर्वर को आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। बैशन सर्वर का प्राइवेट आईपी कॉपी करना है, सेम जैसे हमने डेटाबेस के साथ किया। अभी डेटाबेस नहीं है, जस्ट वेब सर्वर है प्राइवेट वाला, ठीक है। तो उस सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड में हमें क्या ऐड करना है, एसएसएच। यहाँ पे ऑलरेडी एनीवेयर है, बट आप रियल टाइम में इसको, बैशन के लिए हमने एनीवेयर रखा था, बट आप इसका स्पेसिफिक आईपी एड्रेस देना है तो ऐसे दे सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको बाय डिफॉल्ट एनीवेयर ही रखते हैं, बैशन वाला, ठीक है। इसमें भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पहले हम बैशन सर्वर लॉगिन कर लिया ना, मतलब कनेक्टिविटी तो है। उससे एक बार चेक कैसे करना है कनेक्टिविटी है कि नहीं। वेब सर्वर जो है प्राइवेट वेब सर्वर, उसको मैंने प्राइवेट नाम दिया है, लगे तो इसको मैं वेब कर देता हूँ, वेब प्राइवेट, ठीक है। ये वेब सर्वर है हमारा, इसका प्राइवेट आईपी मैं कॉपी करता हूँ, और इधर यहाँ हम वापस आते हैं।
पुट्टी सर्वर पे इसको हम टेलनेट करके देखते हैं SSH हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हम ये यहाँ पे अभी ये पिक्चर, यहाँ पे कोई किसी को डाउट नहीं है ना, ये यहाँ पे हमने बैशन सर्वर पे लॉगिन किया है जो कि पब्लिक सबनेट पे बना है। ठीक है, यहाँ से हम चेक कर रहे हैं जो हमारा प्राइवेट वेब सर्वर है। ठीक है, सर टेलनेट प्राइवेट ही वेब कमांड सर्वर, है क्या जी? हाँ टेलनेट कमांड है। पोर्ट चेक कर लो, पोर्ट ओपन है कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ से हम टेलनेट कर रहे हैं, और क्योंकि पिंग तो बाय डिफॉल्ट बंद रहता है तो पिंग नहीं कर पाओगे आप, तो टेलनेट ये पोर्ट ओपन है कि नहीं चेक करना है। ये आईपी किसका है? वेब सर्वर का प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ठीक है, और हम कहाँ पे एसएसएच कर रहे हैं? 22 पोर्ट नंबर पे। सी हमने एनीवेयर वहाँ पे ओपन रखा था एसएसएच, इसलिए वो वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब कनेक्टिविटी वाइज कोई इशू नहीं है, हम बैशन सर्वर से प्राइवेट वाले सर्वर को हम कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अभी डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या लगेगा कनेक्शन के लिए? कैन एनीवन गेस? जैसे हमें लोकल से अगर कनेक्ट करना है तो हम कीपैड डालते यहाँ पे, ये ऐड करते हैं पुट्टी में। अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? प्रायव्हेट कीपॅड टाका लागेल का सर याचं? यस, तो हम क्या करते हैं, कीपैड हमारा यहाँ पे लोकल पे पड़ा है, तो उसको जस्ट, और अपन ने अपलोड कर, सिक्योरिटी ग्रुप में बैशन सर्वर का प्राइवेट आईपी ऐड किया था ना, राइट? यस यस यस। अभी वो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने दोनों का एक ही रखा है, इसलिए बैशन सर्वर के लिए हमने एनीवेयर किया था ना, तो इसलिए हम उसको एनीवेयर ही रखा है। बट आप एज अ प्रैक्टिकल अगर करोगे रियल टाइम में, तो वो बैशन सर्वर का ही आईपी एड्रेस वहाँ पे होना चाहिए एसएसएच के अंदर, और बैशन वेब सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप अलग होना चाहिए, बस उतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अभी जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ही सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप दोनों को अटैच कर दिया है, हाँ, इसलिए ओके, अलग से पोर्ट ओपन नहीं किया। ठीक है, अच्छा। लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में अपन सिक्योरिटी ग्रुप दोनों के अलग रखेंगे, और एनीवेयर की यस जगह यस पे दोनों, तो आईपी एड्रेस हाँ रहेगा। यस यस। अभी फाइल हमें अपलोड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टूल है, किसी ने यूज किया होगा तो, फाइल जिला यूज किया है किसी ने? हाँ, बहुत रेयर, 2-3 बार यूज किया है। वीएनएससीपी जैसा है ना वो कुछ? हाँ यस यस यस, उसके जैसे ही है। फाइल जिला एफटीपी क्लाइंट है, जहाँ से हम फाइल सर्वर पे अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली ये वेबसाइट है, मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा प्रैक्टिकल रहेगा, थोड़ा सा आप ध्यान से करना है इसको। पेड एक्चुअली सर्विस है क्या एडिशनल सर? चीज है, नहीं ना फ्री वाला है, पेड में। टू हिट जस्ट टूल है, क्लाइंट है। ओके सर। फ्री हेगले कॉल है। ठीक है, ये वाला डाउनलोड कर दो जो फ्री वाला है। सेम प्रोसेस और पुट्टी जैसे ही इसको करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस और की पेयर वगैरह अटैच करके हम अपलोड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बैशन सर्वर का आईपी यहाँ पे पहले कॉपी कर लेते हैं, पब्लिक आईपी। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, इसको जस्ट क्लिक करते हैं। या फिर वापस डाउनलोड में इधर से आइए, जस्ट डबल क्लिक। ओके, विंडोज में कैसा अच्छा लगता है ना, जैसे ग्राफिकल आता है, बट लिनक्स में ऐसा नहीं है। ये स्पॉन्सर्ड है क्या? अच्छा ठीक है, बाद में निकाल देता हूँ इसको। उसको डिक्लाइन करके नेक्स्ट किया रहता तो भी हो जाएगा। नहीं, वो हैंग हो गया एक्चुअली,
हाँ नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, हैंग हो। भी वो ओपेरा इसको अनइंस्टॉल close- करने के लिए, मतलब स्किप करने के लिए वो प्राइवेसी पॉलिसी डिक्लाइन करके नेक्स्ट, तो वो वैसे ही होता, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर। हाँ ना, ये पहले स्पॉन्सर नहीं आता था, अभी आना लगा है। इसको देखते हैं, प्रोसेस किल करता हूँ मैं इसका। ठीक है, फिर से ट्राई करता हूँ, या फिर दूसरा कॉपी है क्या, देखता हूँ मेरे को। ये फाइलज़िला और विनएससीपी मतलब एग्जैक्ट सेम है कि इसमें कुछ ज्यादा फीचर्स है या फिर कम ऐसा है? फीचर वाइज एक बार देखना पड़ेगा। विनएसीपी मैंने एक दो बार इंस्टॉल तो किया था, बट नॉर्मली फाइल अपलोड और डाउनलोड के अलावा तो कोई यूज किया नहीं मैंने उसका। हम्म। यहाँ पे ना FTP, अच्छा फाइल जिला, सॉरी। ओके, वहीं से एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा, वही पे आ रहा है, ठीक है। स्पॉन्सर वाला ऑप्शन हटा के देखते हैं हो जाता है क्या। इसको बस डिक्लाइन करना, डिक्लाइन शायद नेक्स्ट। अननेसेसरी लोड भी लेगा ना सिस्टम पे, ओपेरा ब्राउजर। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अभी ऐसा यूआई दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइल के नीचे ये वाला दिख रहा है कि विंडो ऑप्शन, इसको ओपन करना है। फाइल के नीचे यहाँ पे हैंग हो गया क्या फिर से। हाँ, न्यू साइट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है SFTP सर्वर का, ये देना है आपको IP एड्रेस। ठीक है, पोर्ट नंबर देना है SSH का 22। लॉगऑन टाइप में यहाँ पे आपको देना है की फाइल। ओके, यूजर नेम पासवर्ड तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि की पेयर से हम लॉगिन करते हैं। यूजर नेम दे दीजिए बैशन सर्वर का जो उबुंटू है, और की फाइल में सिंपली जो कि PPK फाइल है वो अटैच कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, डाउनलोड से जहाँ पे आपने की पेयर रखा होगा, सिंपल है। और जस्ट कनेक्ट। पोर्ट वगैरह प्रॉपर ओपन है तो आपका सर्वर यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ये रिमोट साइट है, ये लोकल साइट है आपकी। लोकल मतलब आपका लोकल डेस्कटॉप, जहाँ से आप फाइल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। और रिमोट से आपका जो भी ये है ना /home उबुंटू यूजर। ओके, अब यहाँ पे लिनक्स सर्वर पे देख सकते हो मैं कहाँ पे हूँ। PWD कमांड है जस्ट टू चेक दी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मुझे आना है होम उबुंटू में। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं है। LS कमांड है टू चेक द फाइल्स। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, लोकल साइट से मेरे डाउनलोड फोल्डर में जाना है मुझे। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर में आने के बाद मेरा जो फाइल है ये वाला, राइट, डेमो बैशन EC2 लिनक्स PPK फाइल, ये इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। क्या करना है, जस्ट एज यू कैन डू ड्रैग एंड ड्रॉप, और जस्ट राइट क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे रिमोट साइट पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा वो। ठीक है, अभी मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। अगर मैं फिर से LS करता हूँ तो यू कैन सी फाइल इज हियर। ओके, अभी यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कनेक्शन का, बट यहाँ पे मुझे एक डाउट लग रहा है कि ये तो लिनक्स बेस है तो PPM फाइल सपोर्ट करेगा। PPK से तो डायरेक्टली नहीं होगा ना। अपन ये बैशन सर्वर से वो प्राइवेट सर्वर जो लिनक्स का क्रिएट किया EC2 इंस्टेंस, वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? उसके लिए PPK ले रहे हैं ना? यस। एक मिनट, हाँ मैं इसको जस्ट ट्राई करके देखता हूँ। कभी नॉर्मली लिनक्स है तो
पेम फाइल ही सपोर्ट करेगा वो। जस्ट ये ऐसे कमांड रन करना है आपको, SSH-i या की, जो की पेयर है आपका। उसके बाद यूजर नेम कहाँ का, वेब सर्वर का जो प्राइवेट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। EC2-user और @ दे के उसका आईपी एड्रेस किसका, वेब सर्वर का। ये जो वेब सर्वर है ना प्राइवेट वाला, उसका प्राइवेट आईपी कॉपी करना है और यहाँ पे उसको पेस्ट करना है, ठीक है। जस्ट लेट मी ट्राई। ओके, परमिशन डिनाइड। वो पीपीके फाइल का एरर, वो इन उसको क्रिप्ट इसको एक बार एक परमिशन दे के देखते हैं। 600। हाँ, ये मुझे डाउट लगा ही था वैसा। ठीक है, ये पीपीके फाइल डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता ना लिनक्स मशीन को, तो हमें पेम फाइल ही चाहिए, ठीक है। वो, बट अपन पीपीके फाइल ही यूज करते हैं ना लिनक्स मशीन को कनेक्ट करने के लिए। पेम फाइल पीपीके, अगर आपका खुद का मशीन विंडोज है ना, खुद का मशीन अगर विंडोज है, तो आप विंडोज से पीपीके फाइल यूज करके कनेक्ट कर पाओगे। हाँ, बट आप एक ऑलरेडी लिनक्स मशीन पे ऑलरेडी आप हो, वहां से आप दूसरा लिनक्स मशीन एक्सेस कर रहे हो, तो वहां पे तो ये पीपीके फाइल तो नहीं चलेगा, वहां पे पेम फाइल आपको लगेगा। अभी डायरेक्टली प्राइवेट एक्सेस आईपी तो हम प्राइवेट सर्वर जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे टू जनरेट ए न्यू की पेयर। ओके, तो हम देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। नया की पेयर जनरेट करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस कर पाएंगे क्या की पेयर में, देखता हूँ यहाँ से। आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है, पर देख लेता हूँ। नहीं तो होगा कुछ नहीं, बस हमें सेटअप नया बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं। विद दी पेम फाइल, ठीक है, और सेम सेटअप करना पड़ेगा बाकी। जैसे अपन पुट्टीजन से ये पीपीके को पेम फाइल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो यस यस, बट हमारे पास अभी पेम फाइल ही नहीं है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा तो इशू है। पीपीके फाइल को पेम में ऐसे कन्वर्ट करने के लिए कुछ है नहीं क्या मैकेनिज्म? देखता हूँ, कभी तो किया तो नहीं ऐसा ट्रबल शूटिंग। नहीं होगा क्योंकि उसमें सिक्योरिटी कीज वगैरह रहता है, एज पर द सिक्योरिटी पॉलिसी वो फॉर वो अलाउड नहीं है। हाँ, फॉर्मेट जो रहता है ना उसका, पीपीके और पेम का अलग, दोनों का अलग वो रहता है। इंक्रिप्शन फॉर्मेट में रहता हाँ है पूरा का पूरा। हाँ, वो अलग ही इसका ये रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, जस्ट मैं फटाफट कर लेता हूँ दूसरा वाला, कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा उसमें। बैशन सर्वर तो हमारा ओके है, उससे कुछ करना नहीं है, बस वेब सर्वर वाला जो है ना, उसको मैं जस्ट नया जनरेट कर लेता हूँ, बस वही करना है एक सेटअप, और कुछ है नहीं। इसको सिंपली मैं डिलीट कर देता हूँ, जस्ट नया लॉन्च कर लेता हूँ विथ पेम। क्या कॉपी हो गया, डेमो EC2 वेब प्राइवेट, ठीक है। अमेजोन लिनक्स सेम सेटअप। हाँ, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, मेरे पास पीएम फाइल कौन सी है देखता हूँ मेरे को। विंडोज EC2 की पेयर, या फिर सिंपल सा नया ही बना लेता हूँ, झंझट नहीं, की पेयर का थोड़ी पैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ से पेम सेलेक्ट कर लेना और जस्ट क्रिएट। इसको यहाँ पे बीपीसी के अंदर बीपीसी में हमें लेना है डेमो बीपीसी डेवॉप्स वाला, और यहाँ पे हमें प्राइवेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, डेमो डेवॉप्स SB प्राइवेट वाला, और जस्ट बाकी सब सेम सेटिंग, सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह, ठीक है।
और जस्ट लॉन्च कर देते हैं। लिनक्स सर्वर फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। थोड़ा सा विंडोज ये वो इनिशियलाइज करने में टाइम जाता है। तो जब प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आ सकती है, वो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ही हम थोड़ा सा उसमें सीखते सीखते जाते हैं। ये वाला चीज़ मैंने सुना था लास्ट टाइम फ्रेंड से, बट मुझे वो करना ही था, तो मैं सोचा कि चलो आपको भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्क होगा वो। अगर ये प्रॉपरली वर्क हो गया तो फिर आपको जब आप थ्री टायर आर्किटेक्चर अगर जब एक्सप्लेन करोगे ना, तो उस टाइम पे ये डिजाइनिंग आप वहाँ पे बता पाओगे। इस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। अभी ये काम कर सकते हैं हम। अब इसका तो आईपी चेंज हुआ होगा, वेब सर्वर प्राइवेट जो भी इनिशियलाइज हो रहा है ना, फिर से इसको एक बार टेलनेट करके देख लेते हैं कि टेलनेट हो रहा है कि नहीं। होना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप तो सेम है और पोर्ट ओपन है। ठीक है, और 22 को ठीक है हो रहा है। अभी हम इसको यहाँ पे बस फिर से हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ये पेन पीपी के फाइल में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव कमांड है, आरएम कमांड। फाइल जिला ओपन है मेरे पास ऑलरेडी। इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वो फाइल डिलीट हो गया। अभी मैं फिर से यहाँ से लोकल साइट से क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये वाला फाइल जो हमने बनाई थी ना, पेम फाइल, ये इसको हम अपलोड करते हैं इस बैशन सर्वर पे। आइदर यू कैन डू ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके, और या फिर राइट क्लिक करके आप उसको अपलोड भी कर सकते हो सीधा। तो वो रिमोट मतलब आपके सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। अभी वहां से कोई डेटा आपको डाउनलोड करना है तो उस रिमोट साइट से जाके उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए जहाँ जिसको आपको डाउनलोड करना है लोकल पे, आपके लैपटॉप पे, उसको राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो वो लोकली डाउनलोड हो जाएगा। इसके लिए आप फिर फाइल जिला यूज कर सकते हो। एफटी में पुट्टी में कैसा ये ऑप्शन नहीं है। पुट्टी में आप जस्ट आपको शेल मिलेगा ये वाला, ऐसे आपको डाउनलोड वगैरह वहाँ पे अपलोड नहीं कर पाओगे आप। अभी मैं यहाँ पे जस्ट एलएस करता हूँ तो आप यू कैन सी डेमो फाइल हमारे यहाँ पे आ गया। एक परमिशन देना होता है 600 वाला जो मैंने दिया, और उसके पहले देखते हैं नॉर्मली कनेक्ट करने का होता है क्या। SSH-I की दे देना है। ठीक है, अभी यहाँ से मैं उसको क्या करूँगा, वेब सर्वर का प्राइवेट आईपी लेता हूँ यहाँ से। प्राइवेट आईपी ले लिया मैंने यहाँ से। इसको यूजर नेम क्या है, अमेजोन लिनक्स मशीन है तो EC2-user ऐसे यूजर नेम रहेगा उसका @ वो आईपी एड्रेस दे दूंगा उसका, और मैं जस्ट कनेक्ट करूंगा। ठीक है, फिंगरप्रिंट पूछ रहा है एक्सेस करने के लिए। ठीक है, यस सी, लॉगिन हो गया। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे पैशन सर्वर से लिनक्स सर्वर एक्सेस किया प्राइवेट वाला। ठीक है, जैसे हमने इसके पहले डेटाबेस एक्सेस किया था, राइट। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट देख पा रहे हो, EC2 यूजर जो उसका आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस। और यहाँ पे आपको वेलकम मैसेज भी दिख रहा होगा, अमेजोन लिनक्स 2023। ठीक है, अभी हम बैशन सर्वर पे नहीं है, हम कहाँ पे है, हम अभी यहाँ पे वेब सर्वर पे है जो प्राइवेट सबनेट के अंदर है। अभी यहाँ पे अगर हमें कुछ पैकेज इंस्टॉल करना है, पहले मैं sudo su करता हूँ जस्ट टू मेक अ रूट प्रिविलेजेस। ठीक है, अगर आप W कमांड रन करते हो तो यहाँ पे आपको अप टाइम भी दिख जाएगा, कब ये सर्वर लॉन्च हुआ, जस्ट 3 मिनट शो कर रहा है। ठीक है, इसके लिनक्स के अलग अलग कमांड है, जब लिनक्स पढ़ेंगे तो उसमें तो कुछ कमांड हम कवर करेंगे। भी अगर मैं गूगल को पिंग करके देखता हूँ यहाँ से, इंटरनेट कनेक्शन बाय डिफॉल्ट रहेगा क्या, यहाँ पे नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि ये प्राइवेट सबनेट के अंदर है और हमने तो इसको इंटरनेट एक्सेस दिया ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट एक्सेस नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मैं कुछ पैकेज इंस्टॉल करने जाता हूँ यहाँ पे तो होता है क्या, देखते हैं। या मैं इंस्टॉल, हमें nginx इंस्टॉल करना है। यहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि वो इसको इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं है, तो वो पैकेज या कुछ पैच वगैरह आप नहीं कर पाओगे। अभी सेकंड थॉट हम ये चीज़ हम वो देख लेंगे इस पे,
ठीक है, इसको अभी इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रहा है, आप देख पाओगे यहाँ पे कुछ भी आपको स्पीड वगैरह यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, जो नेट गेटवे का कंसेप्ट है, ठीक है, वो हम यहाँ पे उसको अटैच करते हैं। कैसे करना है, आपको वीपीसी के अंदर जाना है, कंटिन्यू करना है ना, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है ना, मतलब या एक ही दिन में ज्यादा लग रहा है आपको ऐसे? क्या प्रॉब्लम नहीं हाँ, सर? नहीं 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 Yes, नहीं ना, yes. ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द बैच टॉपिक है, क्योंकि ये आप सिलेबस देखोगे तो उसमें है ही नहीं है, बट रियल टाइम में ये बहुत काम चीज़ काम में आती है, इसलिए मैं जस्ट आई वांट टू शो यू। तो वापस मैं वीपीसी में आता हूँ साइड से, वीपीसी में यहाँ पे आप देख पाओगे जो नेट गेटवे कंसेप्ट है। नेट गेटवे, एक चीज ध्यान रखना, नेट गेटवे हमेशा बनेगा पब्लिक सबनेट के अंदर, ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट पे नहीं। प्राइवेट पे हम राउट एंट्री ऐड करते हैं, बट बनेगा पब्लिक सबनेट पे, ठीक है, क्योंकि उसको इंटरनेट एक्सेस देना है ना हमें। ये हो सकता है इंटरव्यू में क्वेश्चन आए। अभी आप यू कैन सी कि मुंबई रीजन के अंदर कोई नेट गेटवे क्रिएटेड नहीं है, तो हमें क्रिएट कैसे करना है, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट नेट गेटवे। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, लाइक पब्लिक सॉरी डेमो नेट गेटवे और पब्लिक, ओके, या फिर ऐसे ही सिंपल सा रख सकते हो नाम, डेमो नेट गेटवे, ठीक है। यहाँ से हमें सबनेट सेलेक्ट करना है, पब्लिक वाला। ये हमारे पास बहुत सारे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन देख सकते हो कौन सा है। एनडी वाला तो नहीं है, डीबी वाला तो नहीं है, प्रोजेक्ट वाला भी नहीं है, ठीक है। हमारा सबनेट अभी यहाँ पे अगर डाउट लग रहा है तो आप कैसे आ सकते हो, वापस वीपीसी में आइए। वीपीसी में अलग से विंडोज में टैब में ओपन कर रहा हूँ, यूर वीपीसी पे क्लिक कर लीजिए एक बार। ये हमारा वीपीसी है, राइट, डेमो डेवऑप्स वीपीसी। जस्ट कॉपी दिस वीपीसी आईडी, सबनेट में आ जाइए, यहाँ पे फिल्टर कीजिए उसको पेस्ट करके, ठीक है। यहाँ पे आपको दो पब्लिक और दो प्राइवेट दिखेगा, तो यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ पब्लिक सबनेट हियर, ओके। कोई भी एक पब्लिक सेलेक्ट कर लीजिए, डेमो पब्लिक वाला ये, इसका सबनेट आईडी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सर्च हो गया, डेमो डेवऑप्स पब्लिक 1। यहाँ पे कनेक्टिविटी टाइप हमें पब्लिक चाहिए, और इसको ना एक इलास्टिक आईपी अलोकेट होता है बाय डिफॉल्ट। एग्जिस्टिंग है तो वो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन अलोकेट आईपी, ऑटोमेटिकली एक इलास्टिक आईपी इसको असाइन हो जाता है, ये वाला, ठीक है। और जस्ट बाकी और कुछ हमें करना नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन दिस नेट गेटवे, ठीक है। अब मैं वापस में अगर इसको पे आता हूँ, नेट गेटवे पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे नेट गेटवे दिखेगा। अभी वो पेंडिंग स्टेट में है, ओके, उसको एक्टिव थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लेगा, और इसको एक पब्लिक आईपी असाइन होता है। यहाँ पे और आया नहीं है, वो जब एक्टिव होगा तो आना चाहिए। अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आता है ना, कोई पूछेगा कि हाउ टू पैच प्राइवेट सर्वर्स, लाइक प्राइवेट जो सर्वर प्राइवेट सबनेट में क्रिएट है, तो उसको पैच कैसे करना है, ओएस वगैरह, तो ये नेट गेटवे क्रिएट करके, नेट गेटवे कहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, पब्लिक सबनेट में, ठीक है। फिर वहाँ पे प्राइवेट जो प्राइवेट सबनेट है उसको नेट गेटवे का एंट्री करके राउट टेबल में, फिर उसको इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा वहाँ पे, फिर हम पैच कर सकते हैं, ठीक है। नेट गेटवे यूज करके आप कर सकते हो। किसी को डाउट लग रहा है क्या, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट क्या है ये? सिंपल में अगर बताना अगर रहेगा तो, प्राइवेट सबनेट वो सबनेट जो आईपी का ग्रुप है जिसको इंटरनेट एक्सेस नहीं है, ठीक है। और पब्लिक सबनेट वो जिसको जो आईपी ग्रुप है आपका जिसको इंटरनेट एक्सेस है। इंटरनेट एक्सेस हम कैसे देते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन दिस पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट। राउट टेबल में आपने देखा, राउट टेबल में एंड जो इंटरनेट गेटवे की एंट्री है वो हमें ऐड करनी है फॉर पब्लिक सबनेट, ओके, टू प्रोवाइड द इंटरनेट एक्सेस।
और प्राइवेट सबनेट को वो एंट्री ऐड नहीं करनी है। फ्रॉम देयर वी कैन डिफाइन दिस पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, स्टेट अवेलेबल हो गया और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक आईपी भी असाइन हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी हमें करना क्या पड़ेगा, वापस आपको आना है राउट टेबल में, वो एंट्री करना पड़ता है जस्ट टू प्रोवाइड द इंटरनेट एक्सेस। यहाँ पे वो मैं फिल्टर कर लेता हूँ वीपीसी वाला, जो हमारा वीपीसी है ना, डेवऑप्स डेमो डेमो वीपीसी। वीपीसी आईडी कॉपी सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से और सब राउट टेबल में आके ना उसको फिल्टर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट है। अभी पब्लिक में हमें कुछ नहीं करना है, प्राइवेट में क्लिक करना है आपको। जस्ट स्क्रॉल अप, राउट में आके मैं एंट्री करता हूँ एडिट राउट्स। जस्ट यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लीजिए, इट शुड बी अ प्राइवेट वन ओनली। ओके, जस्ट एडिट राउट्स, यहाँ से ऐड राउट 00 करना है। देन यहाँ से आपको वो ऑप्शन आएगा नेट गेटवे, आ रहा है यहाँ पे, नेट गेटवे सेलेक्ट कर लीजिए। जस्ट नेट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और जस्ट सेव कर लीजिए। ठीक है, अभी हम ट्राई करते हैं अपडेट्स करने का। हो रहा है? ठीक है, ये इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस मिल गया उसको। अभी जस्ट मैं इसको यस करता हूँ एंड देन ओके, तो हमारा एनजीनिक्स सर्वर अभी पैकेज इंस्टॉल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी हम इसका सर्विस स्टार्ट कर लेते हैं। सिस्टम सीटीएल एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं, ये कमांड रहेगा सिस्टम सीटीएल स्टेटस एनजीनिक्स। ठीक है, अभी स्टॉप है तो उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर से एक बार वी कैन चेक द स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे देखते हो एक्टिव स्टेटस इज रनिंग। ओके, अभी इसको हम सिस्टम सीटीएल एनेबल एनजीनिक्स, ये कमांड क्या करेगा बेसिकली, अगर ये मेरा वेब सर्वर अगर रिबूट होगा तो ये सर्वर जो एनजीनिक्स सर्विस है ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। ओके, अभी ये तो प्राइवेट सर्वर हो गया, मैं बाहर से तो इसका आईपी एड्रेस अगर मैं हिट करूंगा तो मुझे तो कोई यूआरएल एक्सेस नहीं होगा क्योंकि दिस सर्वर इज इन प्राइवेट सबनेट। अब मुझे लोकली कैसे चेक करना है, कल कमांड है। ठीक है, कल -i http स्पेस लोकल होस्ट। ठीक है, क्योंकि बाहर से तो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा ना ये सर्वर, मुझे एक्सेस होगा ही नहीं। कुछ आईपी एड्रेस जो हमने जैसे लोड बैलेंसर सेक्शन में आपने स्क्रीनशॉट भेजा था कि आपका डीएनएस एंड पॉइंट वर्क हो रहा है प्रॉपरली, वेब सर्वर 1 और 2। ठीक है, अब ये प्राइवेट सर्वर है तो बाहर से एक्सेस नहीं होगा, तो हाउ वी कैन चेक, यू कैन यूज कर्ल कमांड। ठीक है, कर्ल कमांड -i और http करके आपको लोकल होस्ट देना है और जस्ट मेक श्योर कि आपका स्टेटस 200 होके आए यहाँ पर, दैट मीन्स आवर वेब सर्वर इज वर्किंग फाइन। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। पैकेज इंस्टॉल हो गया हमारा, एनजीनिक्स सर्वर स्टार्ट हो गया, मतलब एप्लीकेशन इन शॉर्ट डिप्लॉय हो गया हमारा। सर वहाँ 200 सॉरी, नहीं आया, कुछ और आया तो एरर के समय में क्या करना पड़ेगा अगर 200 नहीं आता है तो? मतलब आप एक बार पैकेज चेक कर लीजिए, पैकेज प्रॉपर इंस्टॉल है क्या, सर्विस प्रॉपर रनिंग है क्या। ठीक है, अभी यहाँ पे ना, या बोलो और कुछ डाउट है क्या? मैं जस्ट एनजीनिक्स के डॉक्यूमेंट रूट में जा रहा हूँ यहाँ पे, यूएसआर शेयर एनजीनिक्स एचटीएमएल, आप सीडी कमांड से जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट पेज है उसको मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पे जो डिफॉल्ट पेज है उसको मैं सारा डबल डी प्रेस करोगे ना तो आपका वो कंटेक्स्ट डिलीट होता जाएगा। ठीक है, डबल डी। अभी मैं आई प्रेस करके इंसर्ट मोड में आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे उसको जैसे सैंपल देता हूँ यहाँ पे, वेलकम टू प्राइवेट वेब सर्वर। ठीक है, इसको स्केप करके शिफ्ट कॉलन और W करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इस फाइल का कंटेंट मुझे चेक करना है तो क्या कमांड है, कैट कमांड है index.html। ठीक है, वेलकम टू प्राइवेट वेब सर्वर, मतलब अभी हमारा वेब सर्वर इज ऑलमोस्ट रेडी नाउ। अभी हम ऑन द टॉप ऑफ दिस नेक्स्ट पार्ट देखेंगे सेटअप का। यहाँ पे जो है अभी हमारा दोनों सेक्शन रेडी है, प्राइवेट सबनेट एंड पब्लिक सबनेट बैशन सर्वर। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे मैंने दिखाया था। ठीक है, हमारा ये सेक्शन तो रेडी है प्राइवेट वाला,
वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है, सर्विस रनिंग है, चेक कर लिया। अभी ऑन द टॉप ऑफ दिस हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड बैलेंसर बनाएंगे पब्लिक सबनेट में, और उसका यूआरएल हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, वो कैसे सेटअप करना है देख लेते हैं। वीपीसी का तो काम हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। इस फिर से जाता हूँ मैं EC2 सेक्शन में अभी। ठीक है, नेट गेटवे भी हमें रिमूव करना है, वो चीज़ याद रखना, क्योंकि ये लोड बैलेंसर के पहले वो हमें रिमूव करना है। तो मैं लगता हूँ साइड बाय साइड उसको रिमूव कर देता हूँ, ताकि क्योंकि अभी उसको इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है ना, तो हाउ वी कैन मेक श्योर कि वो वर्क हो रहा है प्राइवेटली। सो हम वापस आना है हमें सबनेट वीपीसी पे, डेमो वीपीसी को कॉपी कर लीजिए, वीपीसी आईडी राउट टेबल में वापस। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर है, प्राइवेट राउट टेबल में आना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस राउट एंड जस्ट रिमूव दिस एंट्री। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको, एंट्री रिमूव कर दी एंड जस्ट सेव इट। ओके, अगर मैं फिर से अगर कुछ पैकेज इंस्टॉल करना हो तो देखो अब कर नहीं पाऊंगा मैं। अपन ने वो रिमूव क्यों किया नेट गेटवे? क्योंकि मतलब उसको कनेक्टिविटी के लिए अपन ने ऐड किया था ना। हाँ, जैसे वो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए ऐड किया था, अच्छा, क्योंकि ये सर्वर प्राइवेट में है ना, तो उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं था। तो हाउ वी राइट। कैन इंस्टॉल द पैकेजेस, तो टेम्परेरी हमने नेट गेटवे क्रिएट किया वहाँ पे, और वो प्राइवेट राउट टेबल पे उसको एंट्री ऐड की, राउट एंट्री, ताकि इसको इंटरनेट एक्सेस मिले। इंटरनेट एक्सेस मिल गया, देन वी इंस्टॉल द पैकेजेस nginx। ओके। अभी वापस से रिमूव कर दिया, क्योंकि हमें प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट एक्सेस देना ही नहीं है, राइट। हम्म। हमारा मोटो वो अचीवमेंट वो है ही नहीं ना हमारा। हाँ, तो राइट, उसके लिए हमने रिमूव कर दिया। लेकिन जब लोड बैलेंसर को अपन पब्लिक सबनेट पे रखेंगे और उसको एक्सेस देंगे, तो और इसकी कनेक्टिविटी लोड बैलेंसर के इसके साथ रहेगी, तो उसको इनडायरेक्टली तो एक्सेस आएगा ही ना पब्लिक इंटरनेट का। नहीं, बट वो राउट होके आएगा ना पब्लिक से। आपको ये जो सर्वर है ना, ये आपको बाहर से किसी को एक्सेस देना ही नहीं है, डायरेक्टली सर्वर का। ओके, जैसे आपने तब डायरेक्ट प्रॉक्सी एक्सेस नहीं कंसेप्ट देना। सुना, हाँ, प्रॉक्सी कंसेप्ट सुना होगा ना आपने, प्रॉक्सी सर्वर। ऑन द टॉप टॉप ऑफ दिस अलग ही सर्वर रहता है, मतलब तो क्या होता है, हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि दूसरे से खांदे और बंदूक घेऊन गोलियां मारने। फ्रंट पे कोई रहेगा अलग ही, बट बैक एंड पे कुछ और ही रहेगा उसका। तो ये सर्वर डायरेक्टली जो वेब सर्वर है, वो हम किसी पब्लिक नेटवर्क के लिए एक्सेस नहीं दे रहे हम डायरेक्टली, उसको प्राइवेट के अंदर ही रख रहे हैं हम। ये वाला सर्वर, ये सर्वर डायरेक्टली किसी को एक्सेस नहीं होगा। हम लोड बैलेंसर थ्रू उसको, जस्ट लोड बैलेंसर पे ही पब्लिक रिक्वेस्ट आना चाहिए, बाकी जो ट्रैफिक इंटरनल रहेगा वो प्राइवेटली ट्रैवल होना चाहिए, प्राइवेटली। बाद में आप इसको नेट गेटवे डिलीट भी कर सकते हो प्रैक्टिस होने के बाद, क्योंकि इसका भी चार्ज आएगा। तो अभी हमें लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे EC2 सेक्शन में मैं हूँ, यहाँ पे लोड बैलेंसर पे। यहाँ पे एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर है, सो वी कैन जस्ट क्रिएट न्यू वन हियर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे इसको हम नाम दे देंगे डेमो डेवॉप्स पब्लिक LB लोड बैलेंसर। ठीक है, यहाँ पे वो स्कीम में वो वाला ऑप्शन है, देखो जो आपने शरद ने या किसी ने तो पूछा था कि इंटरनेट है पब्लिक, सॉरी, लोड बैलेंसर पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। अगर आपका आपका एप्लीकेशन इंटरनल है विद इन अ VPC नेटवर्क, और आपका VPN जो भी ऑफिस के अंदर एक्सेस करना है, तो ये वाला आप ऑप्शन ले सकते हो। ये पब्लिकली एक्सेस नहीं होगा ये वाला लोड बैलेंसर किसी को। ठीक है, तो हम इसको अभी इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट फेसिंग करते हैं, ताकि हमें बाहर से एक्सेस मिले उस लोड बैलेंसर URL का। IP एड्रेस VPC के अंदर यहाँ पे डेमो वाला VPC आपको लेना है, डेमो डेवॉप्स VPC। ठीक है, इस सबनेट आपको ले लेना है पब्लिक वाला। ठीक है, और यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप, जो डिफॉल्ट है वो भी हम ले सकते हैं। अगर नया क्रिएट करना है तो नया भी यहाँ पे क्रिएट करके हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
बेटर है कि हम नया यहाँ पे क्रिएट करेंगे ताकि वो सेग्रीगेट रहे। अभी वापस से कैसे क्रिएट करना है, EC2 में आपको वापस आना पड़ेगा। इधर इधर ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट साइड से, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप नया वाला ऐड कर लेंगे। यहाँ पे नाम देना पड़ेगा डेमो लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा अलो वेब सर्वर ट्रैफिक। VPC यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, डेमो वाला जो है ये वाला। ऐड रूल में हमें ट्रैफिक क्या ओपन करना है, HTTP, ओके, HTTP एनीवेयर, क्योंकि हमें कहीं से भी एक्सेस होना चाहिए एज अ वेबसाइट। और HTTPS फॉर सिक्योर, ओके। इसको भी एनीवेयर कर देता हूँ मैं, और जस्ट सेव, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, ये वाला सेक्शन यहाँ पे वो आना चाहिए, ठीक है। ये वाला आ गया, डेमो लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप, ये वाला सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे टारगेट ग्रुप अभी नहीं है अब, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि लोड बैलेंसर तो हम बना रहे हैं, बट अभी उसको ट्रैफिक कहाँ पे सेंड करना है वो वाला ऐड होना चाहिए, राइट। सो वी कैन जस्ट क्रिएट दिस टारगेट ग्रुप, क्योंकि एग्जिस्टिंग तो हमारे पास कोई है नहीं। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट टारगेट ग्रुप। और यहाँ पे हमें इंस्टेंस अटैच करना है, तो इंस्टेंस टारगेट टाइप हम वी कैन गो विद द इंस्टेंस टाइप, ओके। एंड हियर यू कैन जस्ट गिव द टारगेट ग्रुप नेम लाइक डेमो प्राइवेट वेब सर्वर, ठीक है। HTTP पे ही रहेगा वो, VPC करेक्ट है। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे सर्वर हमें अटैच करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सर्वर का नाम देख लीजिए। बैशन वाला तो हमें ऐड नहीं करना है, यहाँ पे रॉन्ग सर्वर मत ऐड कर देना, ठीक है, जब प्रैक्टिकल करोगे। जो डेमो VPC EC2 वेब सर्वर वाला है वही ऐड करना है हमें, ये वाला इंक्लूड एज ए पेंडिंग, एंड जस्ट क्रिएट टारगेट ग्रुप, ओके। अभी यहाँ से फिर से वापस लोड बैलेंसर विंडो पे आना है हमें, इसको रिफ्रेश कर दीजिए। और यहाँ से लिस्ट है अभी वो पॉपअप हो जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस। एंड बाकी कोई ऑप्शन हमें सेलेक्ट नहीं करना है अभी फिलहाल, और जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट लोड बैलेंसर। अगर आपको SSL सर्टिफिकेट भी अटैच करना है तो यू कैन जस्ट अटैच फ्रॉम हियर। यहाँ पे ऐड लिसनर क्लिक कीजिए, ओके। और HTTP के जगह पे HTTPS ले लीजिए, यहाँ से 443 पे आ जाएगा। सेलेक्ट दैट टारगेट ग्रुप विच इज वी ऑलरेडी क्रिएटेड, एंड यहाँ पे सिक्योरिटी SSL सर्टिफिकेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, सर्टिफिकेट मैनेजर सर्विस से हम जो परचेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा, जो मैं प्रैक्टिकल के लिए डोमेन यूज करता हूँ AWSguruji.net, ठीक है। जिसको सेलेक्ट करके आपको क्रिएट करना है सिंपली, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, जस्ट एक्टिव होने में टाइम लगेगा। सर एलबी का चार्जेस वगैरह कुछ रहता है या कैसा? हाँ चार्जेस रहता है ना, वो फ्री नहीं है। LP का चार्जेस रहता है, उसके अंदर जो भी ट्रैफिक राउट होती है इनबाउंड आउटबाउंड, उसका भी चार्ज आता है। तो अभी प्रैक्टिस के लिए अपन थोड़ी देर के लिए क्रिएट करके यूज करते हैं और बाद में डिलीट करते हैं, तो उसका कुछ चार्जेस नहीं आता है क्या? हाँ, वो मिनिमम आपका फ्री टायर में अगर रहता है ना, एक मिनट देख लेते हैं। फ्री टायर लिमिटेशन, लिमिटेशन, इस पे वो लोड बैलेंसर सेक्शन में जाते हैं हम, क्या फ्री दिया है देखते हैं ना वहाँ पे। कंप्यूट में लोड बैलेंसर कहीं दिखेगा तो बताना, इलास्टिक लोड बैलेंसर, ठीक है। 15 GB ऑफ डेटा ट्रांसफर प्रोसेसिंग फ्री इसमें आता है। और ये किसको एप्लीकेबल है, क्लासिक एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है। लोड बैलेंसर आप बना सकते हो, बना के फिर डिलीट कर देना उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसका एक एंड पॉइंट जनरेट होगा, उसका एंट्री हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। राउट 53 जो डीएनएस सर्विस है, राउट 53 सर्च कैसे करना है, राउट 53 यहाँ से वो आ जाएगा। 53 इसको नाम इसलिए दिया है कि डीएनएस का एंड पॉइंट 53 है ना, तो इसको वो जो वजह से इसको राउट 53 नाम दे दिया है, ठीक है। अभी आपको कुछ बुकमार्क सर्विस यहाँ पे दिख रही होगी, ये कैसे हम ला सकते हैं। इस सर्विस को सर्च किया तो यहाँ पे आपको सामने ये ऑप्शन दिखेगा, इसको अगर आप बुकमार्क पे ऐड कर दिए तो यहाँ पे ऐड हो जाता है। मतलब आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा तो सिंपली आप उस पर जा सकते हो ऐसे। ठीक है, आपके पास डोमेन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली लोड बैलेंसर का जो एंड पॉइंट है उससे भी आप हिट करके देख सकते हो, ठीक है। उसको अलग से 500-600 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। या फिर वो जो फ्री वाला है वो वाला अगर मिलता है तो वो वाला ट्राई कर लीजिए। aws-guruji.net, इस पे मैं जाता हूँ, एक एंट्री हम ऐड करते हैं, इसको नाम देते हैं हम प्राइवेट वेब, जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए प्राइवेट वेब, ठीक है। इसको कैनोनिकल नेम सी नेम देते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लोड बैलेंसर बन गया क्या, यस बन गया। तो इसका इस पे क्लिक करते हैं, डेमो डेवऑप्स पब्लिक एलबी, इसका जो एंड पॉइंट बना है ना ये वाला डीएनएस नेम, इसको ऐड करते हैं। अभी कुछ आ रहा है क्या, देखते हैं आउटपुट। ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है वो भी देख लेते हैं। इसको पहले हम क्या करते हैं, डीएनएस एंड पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि तब तक वो अपडेट हो जाए, और इसको 1 मिनट रखते हैं अपडेशन टाइम एंड क्रिएट और रिकॉर्ड, ठीक ये है। अपन क्यों ऐड कर रहे हैं राउट 53 में डीएनएस, मतलब राउट 53 में इसलिए ऐड कर रहे हैं कि रियल टाइम पे इतना बड़ा डीएनएस नेम रखना ठीक नहीं है ना। हम्म। तो हम, क्योंकि रियल टाइम में हम एप्लीकेशन का डोमेन नेम यूज करते हैं ना, जो भी हमारा कंपनी का रहेगा इंटरनल डोमेन नेम, अगर किसी राइट को देना है तो ये इतना बड़ा एंड पॉइंट तो हम दे नहीं सकते ये बैकएंड का यूआरएल। तो इसके राइट वजह से जस्ट मेक अ प्रॉपर कन्वीनियंट नेम, सो हम ये डीएनएस नेम यूज करते हैं, और थोड़ा सा ओहो वो यूज करने में बिजनेस वाइज अच्छा भी लगता है ना, हम्म। क्योंकि नॉर्मली हम आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते किसी को कि हम बैकएंड में क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक टेक्निकल बंदा है तो वो नॉर्मली आइडेंटिफाई कर लेगा कि बैकएंड पे क्या है, जो भी राइट वो डेवलपर मोड होता है जो भी है नहीं क्या ब्राउजर में, वो बात अलग हम्म है। बट एज नॉन टेक्निकल यूजर हम उसको लोड बैलेंसर का यूआरएल क्यों देते बैठे, ये जैसे हम सिंपल अगर डोमेन नेम दे देंगे उसको तो वो उसके लिए भी इजी रहेगा यूज करने के लिए, कि बस हाँ प्राइवेट वेब वेब डॉट गुरुजी वगैरह जो भी लगाना है तो याद भी रहता है इजीली। ओके। तो ये एक ऐसे डोमेन नेम को अपन मल्टीपल डीएनएस एंड पॉइंट्स मतलब ऐड कर सकते हैं, राइट? हाँ, आप रिकॉर्ड एंट्री आप कितने भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो कि मेरे पास बाकी जो कुछ टेस्टिंग का है यहाँ पे पड़ा है बहुत सारा, ठीक है। हम्म। अभी इसको हमने दिया है प्राइवेट प्राइवेट वेब करके, ठीक है। अभी मैं जस्ट इसको एक बार हिट करके देखता हूँ, एक सेटिंग करना पड़ेगा, आई विल शो यू हाउ टू डू दैट, क्योंकि अभी लोड बैलेंसर से प्राइवेट सर्वर को ट्रैफिक जा ही नहीं रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है आउटपुट, राइट। तो हमें बैकएंड में क्या करना पड़ेगा, लोड बैलेंसर का जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसको वहाँ पे व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे, प्राइवेट वेब सर्वर पे। लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ से उठाना है अपने को, इसको जस्ट थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे सिक्योरिटी सेक्शन में आना है, ठीक है। सिक्योरिटी में ये लोड सिक्योरिटी ग्रुप है, राइट। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी कॉपी कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी मुझे कहाँ आना है, ये बाकी सेक्शन में क्लोज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना रहे। EC2 सर्वर में मुझे आना है, ठीक है। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, EC2 में मैं आ गया। यहाँ पे मुझे इंस्टेंस रनिंग पे मैं आ रहा हूँ, जो वेब सर्वर है हमारा प्राइवेट वाला, ठीक है, इसका सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करना है।
इसका सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करना है, ठीक है। इसका इनबाउंड रूल में हमें पोर्ट ऐड करना है। क्या पोर्ट ऐड करना है? HTTP किस लिए ओपन करना है? एनीवेयर के लिए नहीं ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसको पब्लिक बनाना ही नहीं है। इसका सिक्योरिटी ग्रुप, लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे पेश कर दीजिए, ठीक है, HTTP, और इसको सेव कर दीजिए। अभी मैं इसको फिर से ट्राई करता हूँ, देखिए आ रहा है क्या जो हमने वहां पे ऐड किया था? देखो, वेलकम टू प्राइवेट वेब सर्वर। अब यहाँ पे हमारा वेब सर्वर प्राइवेट में है, हम ना ही हम उसका सिक्योरिटी ग्रुप में HTTP एनीवेयर कर रहे हैं, फिर भी वेब सर्वर हमारा वर्क हो रहा है, राइट। तो ये आप जब हम थ्री टायर आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं ना, टू मेक अ सिक्योर, मोर सिक्योर, तो उस तरह से हम ये ऐसे डिजाइन कर सकते हैं रियल टाइम में। हमारा इंस्टेंस प्राइवेट में ही रहेगा, कोई पब्लिक फेसिंग नहीं रहेगा, जस्ट लोड बैलेंसर पब्लिक फेसिंग रहेगा, और लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप ही ओनली वेब सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ HTTP पोर्ट को ओपन रहेगा, ठीक है, ना कि हम नॉर्मली एनीवेयर करते हैं, ठीक है। तो वेब सर्वर में वो लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप अपन ने ऐड किया पोर्ट ओपन करने के लिए HTTP, तो सिक्योरिटी ग्रुप ही असाइन होता है क्या लोड बैलेंसर को? IP एड्रेस वगैरह नहीं होता है क्या? मतलब नहीं, वो आपको DNS एंड पॉइंट मिलता है ना, वो हाँ, इतना बड़ा तो हम डाल नहीं सकते, तो सिक्योरिटी ग्रुप पे भी आप परमिशन दे सकते हो। ओके, मतलब इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस अगर मैंने किसी सर्वर के लिए, मान लो यहाँ पे लोड बैलेंसर है, बट लोड बैलेंसर के बजाय कोई EC2 इंस्टेंस होता है नॉर्मल, और मैं सिक्योरिटी ग्रुप में HTTP पोर्ट के लिए इंस्टेड ऑफ दैट सर्वर यस, IP एड्रेस मैं सिक्योरिटी ग्रुप ही मेंशन करता रहा, तो उसको कंप्लीट एक्सेस आ जाएगा, राइट? यस, यस। ओके, बट वो अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि वो सिक्योरिटी ग्रुप अगर किसी और सर्वर पे अटैच रहे तो उसी को भी एक्सेस मिल जाएगा, तो इसलिए हम IP एड्रेस देते हैं अगर सर्वर है तो। अभी लोड बैलेंसर तो कहीं और पे रहेगा नहीं, इसलिए वो लोड बैलेंसर के लिए हमने अलग से सिक्योरिटी ग्रुप बनाया और वो उसको असाइन किया वहां पे, ओके, ठीक है। अभी ये HTTPS भी वर्क हो रहा है और नॉर्मल भी वर्क हो रहा है, ठीक है, और ना ही सर्वर पे कोई इंटरनेट एक्सेस है, इंटरनेट एक्सेस भी यहाँ पे नहीं है, पूरा बंद है पैकेट वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से आप वो डिजाइन कर सकते हो जब आप थ्री टायर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करोगे इंटरव्यू पैनल में, तो वो हम लाइव प्रोजेक्ट में देखेंगे जब हम पूरा एक दो प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं ना, उस टाइम पे सब बैच होने के बाद। उसमें अब यहाँ पे डेटाबेस का कोई पिक्चर ही नहीं है, तो वहाँ पे हम डेटाबेस भी ऐड करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो बिफोर रैप अप कुछ डाउट है क्या? मैं नेट गेटवे यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी वो मुझे बिल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा अकाउंट बहुत पुराना है ना, 2016 से कुछ तो चल रहा है, वो एक ही साल के लिए फ्री रहता है जब आप अकाउंट एक्टिवेट करते हो तो। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एज वेल।